آئیے زوردار تالیاں یسوع مسیح کے جلال کے لیے جو پرستش کے حمد کے لائق ہے. Let's join our hands, celebrate him. Hallelujah. We praise. خداوند کی تعریف ہو. باپ تیرا شکر ہو یسوع مسیح تجھے جلال ملے. ہولی گوسٹ ہم تجھے ایگزالٹ کرتے ہیں اس پلیس میں, اس جگہ, اس چرچ میں, اس فیملی میں. ہم ایک کولیکٹیو ہدیہ اٹھاتے ہیں اور ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. شکرگزاری کا ہدیہ, حمد کا ہدیہ, پریز کا ہدیہ, ورشپ کا ہدیہ, سیکریفائزز ہم تیرے حضور لے کر آئے ہیں. آمین آمین آمین. آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو اس گھر میں, اس کلیسیا میں خوش آمدید. اور جو لائیو ویورز ہیں ان کو بھی خوش آمدید. اور آج ایک کام کرتے ہیں, کس کس کے پاس سیل فون ہے اچھے والا, سیلفی والا؟ اوکے. اور اس میں کیا نیٹ ہے؟ ڈو یو ہیو انٹرنیٹ ڈیٹا پیکیج ہے؟ جدے کو ہے اپنا سیل فون کڈے. لیٹس ڈو این ایکسرسائز اور لیٹس ٹیک اے پکچر. اس طرف کو منہ کریں, اپنے منہ اس طرف کو کریں اینڈ ٹیک اے پکچر. بیک گراؤنڈ میں یو کین مینشن کوئی بھی کیپشن دے کر کہ آپ اس جگہ موجود ہیں. بیک گراؤنڈ میں مجھے لیجئے اور بتائیے کہ میں ہولی اسپرٹ ایمبیسی منسٹری چرچ میں ہوں, میں خدا کے اس گھر میں ہوں, خدا کی پریزنس میں ہوں. ٹیک اٹ. یہ میری تحشیر نہیں ہے, یہ خدا کی اس جگہ کی, خدا کی اس گھر کی ایڈورٹیزمنٹ ہے جہاں خدا موجود ہے. آمین. نہیں, آپ لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا. آئی نو اس کا کیا امپیکٹ ہے, اور یہ میں ہی نہیں کر رہا. پلیز ڈونٹ مائنڈ اٹ. اس کو مائنڈ نہیں کرنا. میں اس پر ٹیچ کر چکا ہوں. ایون خدا خود کہتا ہے, بہت دفعہ یہ لفظ آیا بائبل مقدس میں, پرانے عہد نامے میں, کہ اشتہار دو میرا. خدا خود اپنا اشتہار مانگتا ہے. اور ایون یسوع مسیح کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ یسوع کو اشتہار دینے والا, یسوع کا اشتہار دینے والا جون تھا. جون, یوحنا استباغی. آئیو شیئر اٹ, اپنے اسٹیٹس کو اپڈیٹ کریں. وی آر ان دا ہاؤس آف گاڈ, وی آر ان دا ہولی اسپرٹ ایمبیسی منسٹری چرچ, وی آر اے گلوریس چرچ, وی آر ایز اے فیملی ٹوگیدر. آمین. اینڈ اٹس ناٹ اونلی جو میں بائبل سے ریفرنسز دے رہا ہوں, ادر چرچز دنیا میں اس طرح کیا کرتے ہیں. اینڈ گاڈ از ناٹ اینگری ود دس ون. سو ہیپیلی ڈو اٹ, یا مجھ پہ چھوڑ دیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اٹس نتھنگ, اٹس جسٹ ایکسپینڈنگ دا کنگڈم آف گاڈ. آمین. سو یو کین اپلوڈ اٹ, یو کین ٹیک یور ٹائم, یو کین شیئر اٹ. اور جو لائیو دیکھتے ہیں وہ بھی شیئر کیجئے. آپ کی شیئرنگ سوشل میڈیا پر اور اسٹیٹس پر اور جگہ جگہ جہاں پر بھی آپ کے میڈیاز پلیٹ فارمز ہیں, آپ کی شیئرنگ بتائے گی کہ آپ اس چرچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. ڈسٹنس بیریئر نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. جو آن لائن ویورز ہیں, فاصلے کوئی وقت نہیں رکھتے اسپرٹ کے اندر. اور گاڈ از دیئر, آپ کے پاس بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے. اور اگر آپ کنیکٹڈ ہو اس جگہ کی گریس کے ساتھ, خداوند اس میں آپ کی زندگی میں فلو کرے گا. آمین آمین. ایک دوسرے کو گریٹ کیجئے, ملیے, اس سے پوچھئے کہ آپ نے کیا یہ کام یا نہیں کیا ہے. کم از کم 2-3 لوگوں کو سلام لیں, ملیں. نئے چہرے کو ڈھونڈ کے اس کو ویلکم کریں. چرچ انتظامیہ آپ کا کام ہے, پلیز نئے چہرے کو ڈھونڈیں اور اسے ویلکم کریں. شالوم, بلیس یو, گاڈ بلیس یو. شالوم 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 ویورز, گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا. ہم بیٹھ سکیں گے. پٹ اے اسمائل آن یور فیسز پلیز. اس سے پہلے کہ میں سرمن میں آگے بڑھ جاؤں, آئیں انیتا کی لائف کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہاں, لیٹس ونڈرفل 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 ورشپ سر. واو, شی از اے بلیسنگ, ریئل بلیسنگ. خدا کا شکر. آمین. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تالیاں, یہ اپریسیشن سارے میوزیشنس کو بھی گئیں اور ان کے ساتھ سپورٹنگ ٹیم کو بھی گئیں.
جو بیک اینڈ پر میوزک کو اچھا ارینج کر دیتے ہیں ان کو بھی خدا برکت دے, آمین. اینڈ انتظامیہ بھی, پاسٹر عاشر کے نیچے جتنی ٹیم کام کر رہی ہے, آپ کو بھی خدا آنر کرے. پلیز بی مائنڈفل, جہاں جہاں بیٹھے ہیں پلیز کیئرفلی بیٹھ جائیے تاکہ ہم ورڈ میں جا سکیں اور میں جلدی آپ کو آج ڈسپرس کر سکوں. میں بھی اگر کوئی پریئر سیشن خدا کی تحریک سے اگر میں کرنا چاہوں گا تو میں ضرور کروں گا, ادروائز وی آر گوئنگ کوئکلی. ہاں, آج کیا ڈیٹ ہے؟ ہاں سوری 21 سپٹمبر. کتنوں کو پتا ہے 23 سپٹمبر کا؟ جنہوں نہیں پتا اس نے, میں چرچ کو یہ بتا چکا ہوں کہ 23 سپتمبر ہی ریپچر کی ڈیٹ ہے. اپنے سنز اینڈ ڈاٹرز کو, اسکواڈ کو بتا چکا ہوں. وی ویلکم پاسٹر عاشر, گاڈ بلیس یو. 23 سپٹمبر ریپچر کی ڈیٹ ہوگی. سن لیں, شاید میں اس پر ایک ڈیٹیل دے دوں گا, ویڈیو دے دوں گا تاکہ آپ گھر جا کے سن لیجئے. آج کے سرمن میں زیادہ نہیں اس پر بولوں گا. مجھے بہت ساری ویژنز آئی ہیں انگلینڈ میں بھی جو ابھی میں نے چرچ کے ساتھ شیئر نہیں کی اباؤٹ ریپچر. یہ شور ہے 100%, اس کو کہیں لکھ لیجئے, 23 سپٹمبر ہی وہ دن ہوگا ریپچر کا. اوکے, اب بہت سارا مٹیریل یوٹیوب پر, سوشل میڈیا پر, فیس بک پر اویلیبل ہے 23 سپٹمبر کے بارے میں, اور بہت سارا اسی سال کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یعنی پرسوں ریپچر ہونے والا ہے, اسی سال یعنی 2025 میں جانے والے. لیکن پرسوں نہیں جانے والے, اتنا میں بتا دیتا ہوں. اوکے, اٹس نوٹ پرسوں نہیں ہے, لیکن یہ 23 کو ہی ہے. اب لمبا ہو جائے گا سرمن, اس لیے میں اس کا ایک علیحدہ سے ویڈیو دے دیتا ہوں. میں بھی آج 21 ہے, پھر کل ہی کرنا پڑے گا. چلے دیکھتے ہیں, اگر کل مجھے ٹائم ملا تو میں کل اس کو کر دوں گا. لیکن کیا کرنا ہے, میں نے ان کو سنز اینڈ ڈاٹرز کو بولا ہے کہ ہم ہر سال سپٹمبر کا پورا مہینہ وی ول بی ڈیڈیکیٹنگ اٹ فار دا پریئنگ اینڈ فاسٹنگ ایز اے پریپریشن. اسی تیاری دے وچ رواں گے ہر سال. میں ہر سال آپ کو ڈاؤٹ میں نہیں رکھنا چاہتا. اس کے کچھ سائنز ہیں, کل کی ویڈیو یا اگر میں جب بھی اپلوڈ کرتا ہوں اس کو آپ سن لیجئے گا, اس میں کلیئرٹی آ جائے گی آپ کو کہ 23 کب ایکچولی کون سا ایئر. اتنا بتا دیتا ہوں کہ 28 میں کھڑا تھا اسپرٹ میں, اور 27 کی باتیں میں کسی پاسٹر کے ساتھ کر رہا تھا. سو اٹس فار شور کہ 28 میں بھی ہم ادھر ہی ہیں. سو 26 بھی آئے گا ہمارے پاس, 27 بھی آئے گا ہمارے پاس, اور 28 بھی ممکن ہے, پر 28 کا مہینہ مجھے نہیں پتا کہ کون سا تھا. اوکے, لیکن اوبیسلی ایک دو اور چیزیں ہیں جو میں بتا دوں گا آپ کو. 23 سپٹمبر کنفرم ہے 110%. ہوں یہ نہیں کہا کہ تسی ہر سال 22 ستمبر تک گناہ کرتے رہو تو 22 دی رات 11:59 تے ایک دم تسی توبہ کر لو ہوں میں جان لگا ریپچر ہونے لگا میرا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کو ریپچر کی ڈیٹ میں بتا رہا ہوں, آپ کو آپ کے جانے کی ڈیٹ نہیں بتا رہا. یہ ممکن ہے کہ تھی پہلے ہی اتوں ہٹا دیتے جاؤ, وہ تمہوں پتا ہوئے اپنی ڈیٹاں کا. وہ آپ پوچھے خدا سے کہ کتنے دہاڑے جیواں گا, مینوں تو دسی اے خدا. وہ آپ کا کنسرن اپنے خدا کے ساتھ. یہ کنسرن چرچ کا ہے, جس کی وجہ سے خدا میرے ساتھ بولا اور میں نے خدا ان سے پوچھا بھی. اٹس اے چرچ کنسرن, دیٹس وائی I'm giving آن لائن, اور یہ آن ریکارڈ ہے. اٹ ول بی آن ریکارڈ جب تک یسوع آ نہیں آتا. ایون بعد بھی چلتی رہے گی, جدوں ہی چلے جاواں گے. انہاں واسطے جھٹکے دا باعث, شوق دا باعث ہوئے گی کہ پہلے 10 دن دے اندر. بٹ وی آر گوئنگ, آمین. سال زیادہ نہیں ہے, میں نے بولا 28 میں تھا. اب 28 کا مہینہ مجھے نہیں پتا میں کس میں تھا. اوبیسلی اگر 28 میں ہی جاتے ہیں تو پھر میں 23 سپتمبر سے پہلے ہی کہیں کھڑا تھا. بٹ اٹس 23rd.
कल की वीडियो का वेट करें, मैं कोशिश करता हूँ मैं इसका टाइम थोड़ा निकाल लूँ, हो जाएगा। आमीन। मेरे साथ हैं, आमीन। सो कोशिश करेंगे 22 की रात से, 22 सितंबर की रात से शाम से एक्चुअली आप फास्टिंग में चले जाया करें, फैमिली फास्टिंग, एज ए फैमिली फास्ट, बच्चों को भी शामिल कर लें। ओके, 22 के डिनर पर इसको एक लास्ट सफर समझ के किया करें एवरी ईयर। आर यू गेटिंग मी? मैं बताने क्या लगा हूं, एक्चुअली कोई शौक नहीं है इसमें, मैं स्किप कर रहा हूं, बाद में देखते हैं इसको। शौक इसलिए नहीं है कि अगर ईद पैंतीकोस्त या उससे पीछे फसा की ईद जो ज्यूज कैलेंडर की हैं, वो एग्जैक्टली उन्हीं डेटों पर हो सकती हैं जिन डेटों पर यीशु मसीह कह कर गए हैं, या यीशु मसीह कुर्बान हुए फसा पे, और पेंटिकोस्ट यानी रूल कुदस नाज़िल हुआ पेंटिकोस्ट पर ही। इट मीन्स कि बाकी ईदें भी कैलेंडर के मुताबिक ही आएंगी। सारी ईदें जितनी पूरी हुई हैं वो मसीह में, वो कैलेंडर पर, यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ही पूरी हुई हैं, और अब भी यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ही फीस्ट जो अगली है वो पूरी होगी, और वो फीस्ट है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, नरसिंगों की ईद। सो वो अगली है पेंटिकोस्ट के बाद। मेरी बात समझ आ रही है? अब वो आती ही रोश हशना पर है, रोश हशना पर है, वो आती ही रोश हशना बोलते हैं यहूदी नए कैलेंडर को, नए साल को। वो शुरू होता है 22 की शाम से 23 की शाम तक। चांद पर आना होता है, इसकी फिक्स डेट नहीं है। चांद नजर आता है तो ये साल अनाउंस होता है, वो नरसिंगा फूंक देते हैं, 2 विटनेसेस होते हैं, वो नरसिंगा फूंक कर बता देते हैं जी चांद दोनों नजर आ गया। दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर जाकर देखते हैं, इकट्ठे नहीं जाते। दोनों का जब विटनेस आ जाता है कि चांद नजर आ गया, तो फिर वो उसको फूंक देते हैं और वो कौम में नया साल शुरू हो जाता है। यानी कल शाम दे आर एक्सपेक्टिंग, अब तो डिजिटल दौर है, और वो चांद को पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं टेलीस्कोप से। सो कल शाम अनाउंसड है रोश हशना, 22 की शाम से शुरू हो रहा है, 24 की शाम तक ये मनाते हैं इसको, 22 से 23 और 23 से 24 2 दिन। उसके बाद योम कपूर आ जाता है, वो 1 अक्टूबर को आएगा, 2 अक्टूबर तक चलेगा, एक दिन शाम, इनका शाम का दिन बदलता है। योम कफारा, जिस पर हमास ने अटैक किया था इसराइल पर, आपको याद होगा कि नहीं हो याद, इसी दिन किया था। वो ईद मना रहे थे, योम कपूर कर रहे थे, और फिर अटैक हुआ था अक्टूबर में। उसके फौरन बाद आपके पास आ जाता है सकूत। ये यहूदी कैलेंडर मैं बोल रहा हूँ, ये तरतीब से आते हैं, और सकूत एक्चुअली टैबरनेकल्स को बोलते हैं। वो याद दहानी करते हैं विल्डरनेस की, कि हम बियाबान में गुजरा करते थे, हमारे आबाओ-अजदाद बियाबान में रहे थे। पर इतनी डिटेल अभी नहीं बोल सकता, मेरा सरमन टॉपिक कुछ और है। लेकिन मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि हम एज ए फैमिली, ना सिर्फ घराने के तौर पर, बल्कि एज ए चर्च फैमिली भी, हम 22 सितंबर से फास्टिंग में इंटर हुआ करें एवरी ईयर। आर यू गेटिंग मी? जिसको समझ नहीं आती वो क्वेश्चन रेज कर सकेगा, मैं उसका क्वेश्चन एड्रेस कर दूंगा। आप मीटिंग के बाद मुझे कह दीजिएगा मुझे ये समझ नहीं आई, या आप लाइव देखते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, मीडिया टीम मुझे आपका क्वेश्चन पहुंचा देगी। अगर आप दोनों पास्टर्स के नंबर जिनके अवेलेबल हैं इनसे रब्ते में आ जाओ, या आप चर्च मीडिया मैसेंजर पर ड्रॉप कर दो, आपको हम पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे व्हाट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। ओके ओके। बाइबल एक्चुअली साफ बताती है, एक बुक है, वो थीसिस टाइप बुक है, अच्छे स्टूडेंट्स उसको पढ़ सकते हैं। महक, अगर आपको मौका मिले पढ़ना उसे। किंग सोलोमन को एक्चुअली विजडम मिली थी, और प्रोफेटिकली उसने लिखा था इसको। हम उस पर से बड़ा कलाम सुनाते और सुनते भी हैं, और सम हाउ जनाजों पर भी उसमें से आयतें प्रीच होती हैं। वाज की किताब 3 बाब, और उस 3 बाब के अंदर किसका जिक्र है, कोई बता सकता है? अनाम, बगैर खोले उन्हें नाम मिल जाएगा। 3 बाब में कहाँ से शुरू होती है बात? प्राइज 1
2 پرائز تیرا ہو گیا. اوکے لے لی مجھ سے, ہاں میٹنگ کے بعد لے لی. یو کین کلیپ. اچھی میری ڈسائپل ہے. ہر چیز کا ایک, اگر اس کو آپ کھول کے پڑھو تیسرے باب کو, تو سلیمان نے زمانوں کو, سیزنز کو وہاں پر مینشن کیا ہے. سیزنز اگر آپ کاؤنٹ کرو تو وہاں پر 28 سیزن ہیں آل ٹوگیدر. یہ تھیسیز ہے کسی کا, کسی کی بک ہے. 28 اور لاسٹ سیزن جو لکھا ہوا ہے وہ پیس کا لکھا ہوا ہے, اور اس سے پہلے جنگ کا لکھا ہوا ہے. اگر کاؤنٹ کر لو اسے 28 سیزنز. میری طرف دھیان رکھیں گے, چلنا پھرنا بند کر دیں پلیز. آر یو گیٹنگ؟ اپنی بائبلز کھولیے, اس میں سے دیکھ لیتے ہیں. سو اس طرف سے بھی اگر آئیں تو زمین کی کل عمر میں سکھا چکا ہوں ہر طرف سے 6000 سال. 6000 سال کو آپ 28 پہ تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس ایک فگر آتی ہے 214. یعنی زمین دے ٹوٹل سیزن کنے ہوئے 214. ہوں جڑے عبرانی کیلنڈر نو سمجھنا چاہتے ہیں 214 مطلب کرو تقسیم. تو ایک سیزن میں کتنے سال آئے؟ 214.286. اور اگر 28 میں سے 27 سیزن ہو گئے ہیں اور آخری پیس کا آنا ہے تو آپ 6000 سال میں سے 214 نکالو, یعنی 27 تو نکل گئے, ایک سیزن رہ گیا پیس کا 214 سال کا. تو کیا آنسر آتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کسی نے کیا 6000 میں سے یہ نکلتا ہے 5786. تو اگر آپ یہودی سال چیک کرو نا اب کیا چل رہا ہے, گوگل پر لکھ کے دیکھنا ہے عبرانی کیلنڈر دا ایئر, کرنٹ ایئر, تو وہ نکلتا 5786. سو پروفیٹیکلی سلیمان بادشاہ نے سیزنز, ارتھ کے سیزنز بیان کیے ہیں نبوتی طور پر 28, اور اس کے مطابق 27 ہو چکے جنگ والے. سیکنڈ لاسٹ کون سا لکھا ہوا ہے؟ بولے گی ذرا مائک میں. محبت کا ایک وقت ہے اور عداوت کا ایک وقت, جی جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے. سو جنگ کے بعد کون سا ہے؟ صلح. سو پیس. It will come with peace treaty actually. It will start with peace treaty. So this what is happening actually وہ بڑے ہی کیلکولیٹڈ ہیں اسرائیلائٹس, بہت کیلکولیٹڈ ہیں. وہ اپنے ربیوں سے پوچھ کے کرتے ہیں سارا کچھ. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, جس دن انہوں نے ایران پر بمبارڈمنٹ کی ہے کیلکولیٹڈ ڈیٹ نکال کے کیا انہوں نے ایگزیکٹلی. انہیں ٹائم نہیں میں تمہیں دسدا کیوں انہیں یہ ڈیٹ کڈی. 13-14 جون سے میں نے یاد. شارپ کیلکولیٹرز ہیں وہ پروفیسی کو اتنا باریکی سے دیکھتے اتنے کرسچنز نہیں دیکھتے. اینڈ ٹائم پروفیسی کو انہوں نے ایگزیکٹ ڈیٹ کے اوپر بمباری کی ہے نکال کر. وہ میں بتا دوں گا اگر کسی کو چاہیے ہو. آر یو گیٹنگ می؟ سو کیوں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ میں مزے کی بات بتا دوں. 24 والے دن وہ 100 نرسنگوں کا میں ٹیچ کر چکا ہوں. وہ 100 نرسنگیں پھونکنے لگے ہیں, پوری دنیا میں سنائیں گے وہ یوٹیوب اور فیس بک کی براڈ کاسٹنگ کے ساتھ. جان بوجھ کر وہ کر رہے ہیں تاکہ سارے ہمیں سنیں. اور وہ نشان ہوتا ہے ایکچولی, وہ نشان دے رہے ہیں, اٹریکٹ کر رہے ہیں انیمیز کو اپنی طرف جان بوجھ کر. اور جیسے ہی نیا سال ان کا شروع ہوا آپ دنیا میں زیادہ خون ریزی دیکھیں گے. آئی ایم ٹیلنگ یو اہیڈ. گیٹ ریڈی فار بلڈ شیڈ مڈل ایسٹ دے وچ زبردست قسم کا. اور میں اس کے بارے میں آلریڈی آپ نے میڈیا پر لکھ چکا ہوا ہوں. 2024 میں خدا نے مجھے بتایا تھا یہ جو
ये जो डील हुई है, पैक्ट हुआ है सऊदीया के साथ, इट्स समथिंग, ये ऐसे नहीं है, और एग्जैक्ट सीजन्स के ऊपर। जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच, क्या होने वाला है। सो यू प्रे बेटर कि आप इसमें ना फंसें, आपको खुदा निकाले। एंड आई प्रे, इससे पहले कि ये वेव हमारी तरफ आए, इससे पहले कि ये खून रेजी का, ब्लड शेड का झोंका पाकिस्तानी चर्च को हिट करे, हम यहाँ से हटा लिए जाएं। आमीन, आमीन, आमीन। और अगर कोई इसमें आ भी जाता है तो नो वरीज, हम ईमान पर खड़े रहेंगे। हालेलुया। बड़ी टेक्निकली उन्होंने जो लाल बछिया थी उसकी कुर्बानी दे दी हुई है। खबर ये चलवा दी कि वो पांचों जो हैं वो डिस्क्वालीफाई होगी, लेकिन बड़ी टेक्निकली उन्होंने ये कर दिया। उसकी ऐश वो इसराइल में मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने सेव कर ली। कल के दिन या परसों के दिन उन्होंने हाई प्रीस्ट भी अपना अनॉइंट कर दिया, और उनका मूवेबल ऑल्टर भी रेडी है जो मूव किया जा सकता है। जिस दिन उनको हैकल की बुनियादें सही जगह मिल जाएंगी वो वहाँ उठा कर ले जाएंगे। सो ऐश को प्रिजर्व कर लेने का मतलब है कि वो खाक उन्होंने जगह जगह महफूज कर ली है, ताकि अगर खुदा न खास्ता इसराइल पर अटैक होता भी है तो हमारे पास वो खाक महफूज रहे। क्यों? क्योंकि लाल बछिया जब से आदम का दौर शुरू हुआ तब से लेकर अब 9-10 ही टोटल हुई हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुई, और उनकी खाक से ही ये जो हैकल है वो डेडिकेट होती है, प्योरीफाइड होती है, और उसके बगैर नहीं होता। सो उन्होंने इसे महफूज बनाया है। मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ जहाँ इसराइल के नेटवर्क्स हैं वहाँ उन्होंने साशेज़ भेजे हैं, पैकेट्स बना के भेजे हैं सील करके, ताकि वो महफूज हो जाए। इन केस अगर इसराइल ज़्यादा थ्रेट में चला जाता है तो उनके पास कम अज़ कम ये तो महफूज हो। क्यों उन्होंने सीक्रेटली किया, दुनिया को दिखाया क्यों नहीं? चर्च ने एक्चुअली इसको बहुत हाइप दे दी थी, चर्च ने इसको मीडिया पे बहुत ही उछाल दिया था। उनकी रेड हीफर्स अंडर अटैक चली गई। उनको हमास ने ये कन्फेस किया था कि हमने जो इसराइल पर योम कपूर वाले दिन अटैक किया था, हमने रेड हीफर्स ही ख़त्म करनी थी। ये उनके आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हमारे अटैक का मकसद इसराइल पर ये लाल बछियाँ मारना है, क्योंकि लाल बछियाँ मरती है तो हैकल का इशू बंद होता है, हैकल का इशू बंद होता है तो फिर मस्जिद के गुंबद का इशू, मीनार का इशू बंद होता है। सो दे फेल्ट थ्रेट, उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने मस्जिद से थ्रेट है, जिस वजह से उनको इस चैप्टर को क्लोज करना है, लेकिन वो नहीं हो सका। चर्च दे सरमन्स की वजह ना बहुत सारे हमारे जो टीवी स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको इतना हाइप दे दी। ये उन्होंने बोला है इसराइलियों ने कि इस वजह से हमें ये सीक्रेटली करना पड़ा है, क्योंकि ये फ़ौरन बात को फैला देते हैं चर्च वाले। इन्होंने बहुत ही मसाया दी इन्होंने बहुत काली पई है कि यसू जल्दी आ जाए, तो उन्होंने भी साढ़े ना बहुत ही काली है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो पीस में चले जाएं, उनकी हैकल वापस आ जाए। हमारे पास तो है पर उनके पास नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट, वो एक कंध में टक्कर मारी जा रहे हैं कितने हज़ार साल तक। हम तो अपने अपने चर्चिज़ में फैमिलीज़ के साथ मिल के बैठ जाते हैं, लेकिन वो एक दीवार ही लेके बैठे हुए हैं। लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो इसको कम्प्लीटली बिल्ड कर लें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और मैं मे भी इस पर बाद में बात कर सकूँगा, आज इसको इधर ही छोड़ देते हैं। सो 22 की रात से फैमिली फास्ट है, फैमिली फीस्ट, अर्सलान भाई, फैमिली फीस्ट के फास्ट फैमिली फीस्ट अगले दिन कर लो, तई कर लो है, इनू भी पता ही एक और कुड़ी साढ़े को है, उन्होंने भी फैमिली फीस्ट का बड़ा शौक है। सो फैमिली फीस्ट भी करें, लेकिन 23 को, हाँ 23 को करें जब आप रोज़ा खोलते हैं। गॉड ब्लेस यू। आइए मेरे साथ सरमन में चलते हैं, रिकैप लेते हैं पिछले सरमन का, उसी की कंटिन्यूटी में रहेंगे। मैं लास्ट संडे कुछ सिखा रहा था और मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा अब, क्वेश्चन इसलिए नहीं करूँगा टाइम की किल्लत की वजह से। हम सीख रहे थे खरूज 13वें बाब उसकी 17वीं आयत से, और उसी आयत में वापस चले जाएंगे। खोल लीजिए प्लीज़, उसे अपने सामने रख लीजिए प्लीज़, अपनी बाइबल्स मुझे दिखाएं। हालेलुया। बाइबल्स बाइबल्स बाइबल्स, यू आर इन द चर्च, यू शुड कैरी योर बाइबल्स। आपको चर्च आना है तो अपनी अच्छी बाइबल लेकर आएँ, जड़ी पढ़ी जा सकती है। ओके, आमीन। गॉड ब्लेस यू जो लेकर आएँ, गॉड ब्लेस यू। हम एक हवाले में हैं जिसमें हमने सीखा कि जानबूझकर खुदा ने इसराइलियों को जब फिरौन की गुलामी से निकाला तो लंबे रूट पर डाल दिया। जानबूझकर क्यों? जानबूझकर मतलब कैलकुलेटेड, समझते हुए। अंडरस्टैंडिंग क्या थी खुदा के दिमाग में, वो इस आयत में लिखी हुई थी। पढ़ेगी दोबारा। और जब फिरौन ने
उन लोगों को जाने की इजाज़त दे दी तो खुदा इनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया। तो फिरौन ने क्या दी? परमिशन, बड़े झटके खाने के बाद परमिशन ग्रांटेड टू गो, जाओ। अब खुदा किधर से लेके जा रहा है इनको? शॉर्टकट से नहीं, जो जल्दी इनको पहुंचा देता। खुदा वहां से नहीं इनको लेकर गया, खुदा इनको लंबे रूट से लेकर गया। रीजन इस आयत में लिखी है। हाँ जी, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा। क्या कहा? अपने अंदर, यानी अपने आप से बात की खुदा ने। ऐसा ना हो हाँ। कि ये लोग लड़ाई भड़ाई देखकर पछताने लगें और हाँ। मिस्र को लौट जाएं। सो खुदा को फियर था, खुदा की कैलकुलेशन। खुदा को भी फियर हो सकता है हमारी वजह से। सुनो ध्यान से, खुदा का दिल मलूल होता है। बाइबल में लिखा हुआ है, ही रिग्रेटेड, ही रिपेंटेड अबाउट एक डिसीजन करके, जब उसने तूफान भेजा था। सो गॉड इज एक्चुअली, आदम को स्टडी करके, हमको स्टडी करके खुदा अपने इमोशंस का डिस्प्ले करता है। खुदा खुश होता है। बाइबल मुकद्दस में खुदा के रोने का भी जिक्र है। यशायाह नबी के गालबन सीफा में, मुझे एग्जैक्ट वर्स नहीं याद, उसके इमोशंस हैं। और इवन रूल कुदस के रंजीदा होने का भी जिक्र है, और रूल कुदस की आहें भरने का भी जिक्र है। आहें कब भरी जाती हैं? जब व्हेन यू क्राई, व्हेन यू वीप, जब आपके आंसू गिरते हैं, रोमियो के खत के अंदर। बट लेट्स स्टे कनेक्टेड विद द स्क्रिप्चर कि खुदा ने क्या किया? कैलकुलेशंस की। नो, आई थिंक सो कि इनको इधर से नहीं भेजना चाहिए। ये जंग की वजह से ये क्या हो जाएंगे? मायूस हो जाएंगे, ये वीक हो जाएंगे जब फिलिस्तीन को रास्ते में मिलेंगे। तो मैं इनको शॉर्टकट नहीं, मैं इनको लंबे रूट पर लेकर जाता हूँ। और मैं लास्ट संडे इस पर टीच कर रहा था कि ये एक रीज़न है लोगों की हीलिंग और डिलीवरेंस लेट होने की। आप हीलिंग और डिलीवरेंस चाहते हो कि आपकी ज़िंदगियों में हो, लेकिन लेट होती है। वो एकदम से शुरू नहीं होती। आप फिरौन की गुलामी से निकलना तो चाहते हो, रोते हो कि खुदावंद आपको कुछ छुड़ाए, भेजे खुदा मूसा को, किसी यशुआ को भेजे, लेकिन आपको होती नहीं है जल्दी वो डिलीवरेंस या हीलिंग। उसकी रीज़न ये है कि आप अच्छे वॉरियर्स नहीं हो, एंड गॉड नोज इट कि ये लड़ नहीं सकता उन फिलिस्तियों से। दिस इज द वे। खुदा को ये चूज करना पड़ता है कि एक लंबे रास्ते पे आपको डाले, और लंबा रास्ता भी जंगों से ही भरा हुआ है। आगे हमने पढ़ा कि फिर भी यशुआ को बड़े किंग्स के साथ फाइट करनी पड़ी, बड़े किंग्स के साथ। सो अगर जंगें ही लड़नी है लंबे रास्ते पे भी जाके, तो क्यों ना असी एक ही फिलिस्ती दे नाल टकराइए तो फिनिश कर दिए जंग में, और अपनी हीलिंग को हम एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। मेरी बात समझ आती है आपको कि नहीं? सो मैं एक रीज़न लास्ट संडे टीच करके गया हूँ। लेट्स जंप इनटू द अनदर रीज़न। ओके, एक और रीज़न भी मैंने बोली थी जाते जाते कि लोग प्रेयर लेने आते हैं ना कि हीलिंग लेने। लोग आते जरूर हैं, पास्टर के सामने आएंगे, हाथ रखवाएंगे, दुआ करवाएंगे। दे कम टू रिसीव जस्ट प्रेयर, ना कि इस मूड च कि उन्होंने हीलिंग मिलेगी, हीलिंग चुकन, या इस ईमान च कि उन्होंने डिलीवरेंस चुकी जाएगी, उन्होंने अपना हिस्सा चुकन। यीशु के पास जब लोग आते थे, शागिर्दों के पास, तो जो इस फेथ से आता था कि वो कुछ लेके जाएंगे, उसने कहा मैं इसकी पोशाक का किनारा डिसाइडेड कि मैं चलनी है, मैं दुआ करान नहीं चली, मैं हीलिंग चुकन चलनी है, मैं तो अपनी हेल्थ चुकनी। उसने उठा ली, उसने बोला तू यहीं से कह दे तो मेरा नौकर। उसने कहा है कि हो जाएगी तो हो गई। चर्च का प्रॉब्लम है नंबर 2, पहला लॉन्ग रूट, वॉर नहीं करनी। पास्टर नवीद साढ़े लिए जानकार, पास्टर नवीद साढ़े, और ये हमारे पास्टर्स ने, बुजुर्गों ने सारी पुट्ठी रीत डाली हुई है। खुदा का ये स्टाइल है कि वो जंग करना सिखाता है। मैं इसको हवाले से टीच कर चुका हूँ, हाथों को उंगलियों को वो ट्रेन करता है, खुदा का स्टाइल है। और अगर खुदा बाप का बाप होते हुए ये स्टाइल है कि वो आपको ट्रेनिंग देता है, जंग करना सिखाता है। क्या जी सिखा दीजिए?
ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋਗੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। इट्स द सेम स्टाइल जो पास्टर्स का होना चाहिए था, फादर्स का होना चाहिए था, स्पिरिचुअल फादर्स का, लेकिन उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। आओ जी मैं रोज़ा रखांगा, आओ जी मैं सही बात बता रहा हूँ। एक केस खुदा के खादिम अलेक्जेंडर एलमंड सुशील की लाइफ का भी है, मैं मेंशन करूँगा उनका नाम क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ। एक केस ऐसा कि वो जवानी तो लैके मरण तक आज़ाद नहीं हुई, वो लेडी मरने तक आज़ाद नहीं हुई। ये उनकी खिदमत का केस बता रहा हूँ। नंबर 2 मेरे प्यो की अपनी खिदमत का केस, ज़बरदस्त डिलीवरेंस उस बंदे के हथों होंदी सी, लेकिन एक केस वहाँ वेखा कोई नहीं आज़ाद है, वो भी पोजेस्ड ही मरी है। कहने कि वो दोनों खुदा की बंदियाँ थी लेकिन पोजेस्ड थी। सुनो, मैं अपनी वाइफ को कल सिखा रहा था इस बात को। 3 तरह से सेटन काम करता है एक ईमानदार की ज़िंदगी में। मैं क्या कह रहा हूँ? एक ईमानदार की ज़िंदगी में। सुनो ध्यान से, मेरी तरफ मतवज्जा हूँ सारे। मैंने बोला कितनी तरह से? नंबर 1, एक ईमानदार पोजेस्ड हो सकता है, बदरू गिरफ्ता हो सकता है। सुनो ध्यान से, बदरू गिरफ्ता जब सिर्फ उसको निजात मिली हो लेकिन उसके अंदर रूल कुदस ना हो। वो रूल कुदस का बपतिस्मा नहीं रखता, वो खाली है, उसके अंदर होली गोस्ट नहीं है, उसके अंदर स्पेस खाली है। अपनी रूह का होना, आपके अंदर स्पेस का पुर होना नहीं है। जब आपके अंदर होली गोस्ट नहीं है, पाक रूह नहीं है, आप रूह कुदस से बपतिस्मा आपको नहीं हुआ, आपके अंदर स्पेस है किसी और रूह के आने की। यू कैन बी पोजेस्ड, आपकी सोल निजात पा चुकी हो सकती है लेकिन आपकी बॉडी स्टिल सेटन के हाथ में हो सकती है। पोजेस्ड मैं बोल रहा हूं, और बहुत सारे ईमानदारों की है। नंबर 2, एक है पोजेशन, एक है जस्ट हैविंग इवल स्पिरिट विद इन। सिर्फ इवल स्पिरिट का रखना लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं होती, वो चीखें नहीं मारती, वो चुप करके ईमानदार के अंदर से काम कर जाती है। बहुत सारियां, मैं एक मिसाल दे देता हूं। पतरस को यीशु मसीह ने बोला था शैतान मुझसे, पतरस के मुंह में से कभी झाग नहीं थी निकलती, कभी वो ज़मीन पे कलाबाजियाँ नहीं था खाता, बदरू उसमें जाहिर नहीं थी होती। पतरस रसूल था और यीशु का चुना हुआ था और उस पर रूह फूंका गया हुआ था, लेकिन उसमें ईवल स्पिरिट काम कर गया और जीसस क्राइस्ट ने डिसन कर लिया कि ये पतरस नहीं बोल रहा, ये ईवल स्पिरिट है उसके अंदर से। पहला कौन सा है? एक ईमानदार पोजेस्ड हो सकता है, ये उसकी बॉडी है जो पोजेस्ड होती है, उसकी सोल नहीं। प्लीज इसको समझें, उसकी सोल नहीं। पोजेस बॉडीज होती हैं, यीशु ने कटियां होते जो सूरा जब आती हैं बॉडीज पोजेस होती हैं, सोल और स्पिरिट पोजेस नहीं होती। सोल के टाइज होते हैं, गंडा मच जाती ने, वो एक अलग चैप्टर है डिलीवरेंस का, कभी फिर किसी दिन। सोल टाइज होते हैं। लेकिन सुने, नंबर 2 मैंने बोला पोजेशन के बाद ईवल स्पिरिट का अंदर होना ईमानदारों के अंदर होती हैं ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਸਟ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸਮ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਵੱਲ ਭੈਣ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਲਸਟ ਡੀਮਨ, ਇਟਸ ਅ ਲਸਟ ਸਪਿਰਿਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, लेकिन उन्होंने अंदर है जेलसी की रूह है। ईवल स्पिरिट किसी ईमानदार के अंदर, खुदा के अनॉइंटेड के अंदर हो सकती है। बादशाह साउल को देखो, उसके अंदर हसद की बदरू थी और लिखा बुरी रूह से सताने लगी, खुदा का रूह से हट गया और वो भाला फेंकता था दाऊद के ऊपर। और दाऊद की लाइफ को स्टडी करेंगे, समसन की लाइफ को स्टडी करेंगे तो लस्ट उनके अंदर है, ऑपोजिट सेक्स के लिए लस्ट है उनके अंदर। आर यू गेटिंग मी? एक ईमानदार पोजेस हो सकता है। नंबर 2, वो ईवल स्पिरिट का हाथों इस्तेमाल हो सकता है। चर्च में मुझे पता होता है रिलीजियस स्पिरिट कौन सी है, यही है। ईमानदार आप होंगे लेकिन तुसी उठोगे तो तुसी पास्टर को, पास्टर जी मैं चाहना चर्च च इंज होवे, जे इंज ना होया तो मैं चर्च का 30 पांचा गा के रख देंगा।
میں تانوں رہن نہیں دیاں گا. یہ چرچز میں ہوتا ہے, کمیٹیاں ہوتی ہیں, وہ ہر جن کمیٹی سے ہوندے نے سارے ہی بدروؤں نہ بھرے ہوندے نے. جہاں جہاں کمیٹیاں لیڈ کر رہی ہیں چرچوں کو, کسی چرچ کا کوئی حال نہیں, صرف چرچاں دے وچ پاسٹر دے خلاف خط و خطابت ہوندی, یہی ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے اتوں لے کے تھلے تک سارے پاکستان چ ساریاں منسٹریاں جی غالباً, میں کسی ڈینومینیشن کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جن جن ڈینومینیشنز میں یہ رول ہے, انتظامیہ کمیٹی بنائی بھی اچھا پاسٹر نہیں ہوندی, تو سمجھنے اسی ماں دے ٹھڈوں مسا شدہ آئے ہیں یہ شرارتاں کرن واسطے. ایول سپرٹ ہوتی ہے ریلیجیس. بھائی صاحب اسی نہیں چاہتے کہ تسی اے والا پروگرام کرو. بھائی ہو آر یو؟ اٹس ریلیجیس ڈیمن. بھائی صاحب اسی چاہتے تسی اے والا پروگرام کرو. چلو جی پادری صاحب منائیے ویلنٹائنس ڈے چرچ دے وچ, آہستہ آہستہ آ گیا ہوا گرجے چ. اور یہ ریلیجیس اسپرٹ ہے, مکسچر پپا بنا کے. میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں آپ کو ہیلنگ اور ڈیلیورنس کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہوتا کیا, اگر آپ کے اندر کچھ ایسا ہے, بھائی چیک کریں بھائی. آپ ضروری نہیں کہ تانوں اتنے میں دعا کراں لے ہینڈ کراں تے تانوں دورے ہی پہن کے تے پھر ہی تہاڈے چ بدرو آن. نو, چپ کر کے بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہے, اور مجھے پتہ ہوتا کہ کہڑی کام کرن دی, بیکاز آئی ہیو اسٹڈیڈ آل آف دیم. میں نے ان کی اسٹڈی کیا یہ کس کس طرح سے مینیفیسٹ ہوتی ہیں. اینڈ نمبر 2 از دا ڈسرنمنٹ آف دا اسپرٹ. دس از دا ریزن میں کئیاں دی گل نوں اتوں دی نگاہ دینا. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کمیٹی نہیں بنائی چرچ میں. بورڈ ممبرز ہیں, آئی ریسپیکٹ آل آف دیم, لیکن دے کانٹ لیڈ می. نو وے. یہ ترتیب نہیں ہے. اگر رول قدس میرے ساتھ یہ ویژن شیئر کر سکتا تو پھر وہ مجھے ویژن کے بارے اور اس کی کنٹینیوٹی کے بارے بھی بتا سکتا ہے. سو آئی پاس دا انسٹرکشنز نیچے, میں انہیں بتاتا ہوں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. دے آر ناٹ لیڈنگ می. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اینڈ نمبر 3 از دا انفلوئنس. انفلوئنس, ڈیمنز انفلوئنس کر جاتی ہیں کئی دفعہ. نہ آپ پوزیسڈ ہوتے ہو, نہ آپ اندر رکھتے ہو اس بدرو کو, لیکن وہ باہر سے آپ کے, خاص طور پر چغل خوری کرتے کرتے جب لوگ, یہ چغل خوری ایک اسپرٹ ہوتی ہے. جب آپ کو باتیں سنائی جاتی ہیں تو باتوں کے ساتھ, لفظوں کے ساتھ آپ کو اسپرٹ انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے. آپ کو اٹھایا جا رہا ہے, پمپ کیتا جا رہا ہوتا ہے, نیگیٹو پمپ ہو رہے ہوتے ہیں آپ, اور آپ کو پٹھا کام کر جاتے ہیں. میں صرف چرچ کی بات نہیں کر رہا, میں گھروں میں بھی بات کر رہا ہوں. گھراں دے وچ بھی ہوندا ہے, پھپھیاں, مامے, چاچے, ماسیاں, تائیاں, دے ڈو لائک دس. اور ڈیمنز ان کو گھروں کو برباد کرنے کے لیے نیٹ ورکنگ بنا کے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے کرواتے ہیں. اینڈ دے آر انفلوئنسڈ. وہ میں بھی پوزیس نہیں, وہ میں بھی ایول اسپرٹ اندر نہیں رکھتے, ان کے اندر ہولی گوسٹ ہے, وہ بھرے ہوئے ہیں, زبانیں بھی بول لیتے ہیں, سارا کچھ خدمت بھی کری جاتے ہیں, لیکن انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. ہماری چرچ کے پچھلی لیڈرشپ ان میں سے بہت سارے پوزیس تھے. ہاں تھے, مجھے پتہ ہے. ایک کے اندر تھا, مینیفیسٹڈ تھا, سانپ اس کے اندر تھا. سب کو نہیں پتا, سانپ اس کے پیٹ میں تھا. جو پرانے ان کو پتہ ہے. یہاں مینیفیسٹڈ تھا. ایک دفعہ میں نے اس کے ہاتھ رکھا تھا, اس نے مجھے یہاں سے پنچ بھی کیا, اور وہ اس کے اندر کبھی بھی ظاہر ہو جاتا تھا. میں کبھی اس کے بائک پہ پیچھے بیٹھا ہوتا تھا تو وہ پھونکے مارنا شروع کر دیتا تھا سانپ, کہ میں بائک سٹ دیا گا نہر چ. ایک دفعہ میں نے کہا میں نہر سٹ دیا گا, مال روڈ پہ تھے ہم, مار دیا گا تینوں آج, پھونکا مار لگ پیا جیسے وہ سانپ پھنکارتا ہے. کیا لمبی اسٹوری ہے, چھوڑیں اس کو. کچھ پوزیس اور کچھ ایول اسپرٹ اپنے اندر رکھنے والے. ایک تو ان میں سے ریلیجیس اسپرٹ والا تھا, اور ایک ہر کنیاں اسپرٹس رکھنے والا, اور کچھ ان میں سے انفلوئنس ہوئے تھے. ان میں سے میں جانتا ہوں کون کون انفلوئنس تھے. سو اس طرح سے بربادی ہوتی ہے, خرابی ہوتی ہے. اب آئیں واپس ٹاپک پر. کیوں نہیں ہیلنگ اور ڈیلیورنس جلدی ہوتی؟ میں نے بولا, ایک آپ فائٹر نہیں ہو اچھے. نمبر 2 آپ ریسیو نہیں کرنے آتے, آپ پریئر ہی کرنے آتے ہو. ابھی جب میں کال کروں گا دیکھ لیجئے گا کہ کتنے دعا کروانے سامنے آتے ہیں اور کتنے لینے سامنے آتے ہیں. کچھ لے کر چلے جاتے ہیں. میں اور مثال دینے لگا, میرے آفس دے وچ اس شخص نے ٹی وی پر دیکھا کہ یار جادو ان کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے. اس نے مجھے آ کے آفس میں بولا, میں نے بتائی ہوئی ہے ٹیسٹ منی, اور اس کی بھابھی نے اس پہ جادو کیا پراپرٹیز کے ایشو کے. وہ بھی انسپیکٹر تھا میرے آفس میں, ایکسائز پولیس انسپیکٹر. تو وہ جب صبح اٹھا تو اس کی پوری باڈی سے بلیڈ ہو رہا تھا, کٹس لگے ہوئے تھے, سارا بیڈ خون سے بھرا تھا.
हॉस्पिटलाइज हुआ, बड़ा बीमार हुआ, गाड़ी भी बिक गई, फलां टंगान, सारा प्रॉपर्टी का मसला बन गया। वो उसने टीवी देखा और चैनल्स देखे और उसने बोला कि मुझे लेकर जाएं उनके पास, क्योंकि उसने टीवी पर देखा। मैंने कहा क्या हुआ क्या? उसने बताया। मैंने उसको ऑफिस में डिलीवर किया, ऑफिस में मैंने उसको डिलीवर कर दिया। किंज ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸੀਹ ਕੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਈਮਾਨ ਉਹਦਾ ਕਿ मैं किसी भी मसीही को प्रेयर करवाई तो जादू खत्म हो जाएगा, और उधर मौके भी हो गए। मैं उन्होंने आखा मैं किधर को जाना ही, उन्हें ना लिया, वो मैं जानने वाले ही पास्टर, उनका टीवी चैनल है। तो मैं यार तू वो कुछ जाना है तो तेनू जे इतने ही मिल जाए इसे कमरे तो वो कमरा बंद किया, लाइट बंद की, उन्होंने कहा मेरी प्राइवेसी सीक्रेट सी। मैं नो वरीज, कोई गल नहीं, प्रेयर की, डिलीवर्ड, ऑयल दिया, डिलीवर्ड, सब कुछ वापस आ गया। आमीन। सुनो ध्यान से, अभी जब कॉल होगी आप लेने आते हो या प्रेयर करवाने आते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन फेथ। कितने वाजदा ताड़ा। सम पीपल कलेक्ट वेरी इजीली, सम दे डोंट। एक स्क्रिप्चर निकालें और स्क्रिप्चर की तरफ चलते हैं क्विकली। एक ही स्क्रिप्चर है आज और ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा इस पर। जेम्स यकूब के ख़त में 5वें बाब की 14वीं से 18वीं आयत पर हमारा फोकस रहेगा। बेहद यसू तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार, कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले, लानता मुकाइयां रुसवाइयां बदले, कीतियां वफावां बेशुमार। यकूब के ख़त में 5वें बाब की 14वीं से 18वीं आयत को हम स्टडी करेंगे। मुझे पता है पास्टर आशर ने आपको हीलिंग पर टीच किया है। लेट्स कंटिन्यू दिस वन। ओके, अगर तुम में कोई बीमार हो तो 14वीं है, 14वीं से। ओके, अगर तुम में से कोई बीमार हो, इट मीन्स चर्च में बीमार हो सकते हैं। अगर इट्स मीन पॉसिबिलिटी है चर्च में लोग बीमार हो सकते हैं। ओके, तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, कलीसिया के पास्टर को बुलाएं, बुजुर्गों को, हैं? कलीसिया के लीडर को बुलाएं। बताइए, हाँ, थोड़ा सी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इट्स नॉट जस्ट पास्टर नवीद, इट्स नॉट जस्ट पास्टर आशर, पास्टर गजल, नो, इट्स कलीसिया के बुजुर्गों को। डायरेक्शन ठीक करें, हीलिंग हो जाएगी। आप फंस जाते हैं कि मुझे पास्टर नवीद ही से दुआ करवानी है तो ये होना, और माइट भी आपका मिरेकल और हीलिंग किसी और के हाथ में हो, चर्च में ही हो और वो किसी और के हाथ में। आई बैठे, समझ आती है? मैं इस पर टीच कर चुका हूं। यही यस्सु इस हैकल में आपने बचपन से जाता था, पर इसने कभी इस जन्म के लंगड़े को नहीं उठाया। मैं टीच कर चुका हूं, दोबारा टीच कर रहा हूं। यस्सु चले गए हैं आसमान पर, पतरस और यूहन्ना, फिर टाइम आया उनका दुआ करने के, और खूबसूरत दरवाजे पर वो बैठा हुआ था। हालां है वो भी जन्मदाई, अब टाइम है उसकी हीलिंग और डिलीवरेंस का। यस्सु ने नहीं उन्होंने चुके। क्यों नहीं? क्योंकि यस्सु को बाप ने कहा नहीं है उसे उठाने के लिए। यस्सु ने बोला था मैं जो कुछ बाप को करते देखता हूं वही करता हूं। मुझे अगर किसी का विजन आ जाता है, बाय द वे स्नेहा प्लीज गेट रेडी, अरसलान गेट रेडी, थिंग्स आर चेंजिंग स्पिरिचुअली फॉर यू। You are getting somewhere. Something very fruitful is coming to you towards your life. Amen. So, it's Peter's job. It's John's job, not Jesus. अगर मुझे नहीं नजर आता किसी के लिए तो मैं ना हाथ डालूं, बजाय के बाद में शेम हो। मिनिस्ट्री भी सीखें, साथ साथ मिनिस्ट्री भी सीखें।
ਸੁਣੋ, ਇਹ ਯਸੂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਣਾ प्लीज। इज द गिफ्ट इन यू। शिफा की नेमत होती है, वो आपको हील कर रही होती है। और मोजे की कुदरत होती है, वो हील कर रही थी। गिफ्ट यीशु नहीं कर रहा था, ना होली स्पिरिट कर रहा था। आपको जो गिफ्ट दिया गया है वो कर रहा होता हील आपको। ये लिखा हुआ है कुरिन्थियों 12:12। सो अगर आपके अंदर गिफ्ट है, ओके, अब आपको डिसर्न होना चाहिए कि अब ये पावर किस तरफ मूव करनी है, इसको किस तरफ जाना है, वो आपको खुदा बताएगा। यीशु हौज पर गए और हौज पर जाकर एक ही को पिक किया और एक ही को घर भेजा, सबनू नहीं। किन्ने बैठे होने थे प्लीज। इसीलिए अगर एक भी टेस्टमनी आपकी खिदमत में से निकल आती है, पास्टर आशर, यू आर ब्लेस्ड, यू आर अनॉइंटेड टू हील, एक भी, इट्स इनफ। किसी को जरूरत नहीं है कि आपको वो प्रूव करे या आपको डिसअप्रूव करे कि भाई यू आर नॉट एन अनॉइंटेड पास्टर, यू आर नॉट सुलेमान। लिसन इट, एक डिलीवरेंस, यू आर अनॉइंटेड, यू आर ऑथराइज्ड, यू आर ब्लेस्ड। एक हीलिंग, यू आर ब्लेस्ड। द गिफ्ट इज एक्चुअली फंक्शनिंग। इट डिपेंड्स कि हुण किदों ते कैंज खुदा तुहानूं इस्तेमाल करेगा। कम बैक टू द पॉइंट। अगर कलीसिया में से कोई बीमार हो तो क्या करे? तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। बुजुर्गों को, नॉट वन। चेक विद पास्टर नवीद, इफ नथिंग हैपेंड, चेक विद पास्टर आशर, नथिंग हैपेंड, चेक विद पास्टर गजल, नथिंग। लास्ट संडे भी मैंने एक बहन को अपनी मिसिस के पास भेजा। मैंने उसे बोला, मैंने कहा ये वाली हीलिंग और ये वाली टेस्टमनी ना मेरी मिसिस के थ्रू ज़्यादा आती हैं, यू गो देयर। ओवर द ईयर्स मैंने चेक किया इस चीज़ को कि खुदा इसे उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करता है, मुझे कम करता है। तो मैं उस बहन का टाइम क्यों वेस्ट करूँ, जो तो मैंने पता जी है कि यह प्रोडक्ट इस दुकान तो मिलनी है, तो मैं उन्होंने एवं खिलारी रखा, वेट करो मैं लभना, वेट करो मैं लभना। भाई है ही नहीं, आपके स्टॉक में ही नहीं है, इट्स नॉट देयर। तो यू लेट दैट पर्सन गो उस दुकान पे कि वो उतो जाके ले ले। तो मैंने उसको इसकी तरफ भेज दिया, एंड आई बिलीव अगर उसका ही मान है तो वो भी ले जाएगी। हूँ जो दिल च है पास्टर नवीद को मैं दुआ करानी सी, उन्हें की नहीं, मैंने इधर खिलाता, तो फिर ले ले। फिर भी अगर पास्टर नवीद ने आपको भेज दिया किसी तरफ तो फिर ट्रस्ट कर लेंगे पास्टर नवीद आपको गलत जगह तो नहीं भेजेगा। हाँ, आप पहुंच गए पास्टर नवीद तक, इट वॉज योर ड्यूटी, हो गया। अब अगली बात जो उसने किया उसको मान लें। समझ आइए आपको? आगे मैं बोल रहा हूं बुजुर्गों, चेंज चेंज चेंज, नेक्स्ट फाइंड अनदर पर्सन, गो टू माय मदर इन लॉ, गो टू हर, गो टू अनीता, अनीता को खुदा यूज कर सकता है। गो टू दानिश, फाइंड दानिश, दानिश को ढूंढ लो, माजिद को ढूंढ लो, इनमें से किसी को, सुलेमान को पकड़ लो। चेक एनी अदर बहन, यहां से नीलम से बात कर लो, सारा से कर लो, दे आर ऑल ब्लेस्ड, सब के सब। मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, बुजुर्गों की। विकी यू कैन गो, इससे भी बात कर लें, खुदा इसको भी यूज करता है। नवाज दे सिटिंग देयर, मेरी बात समझ आ रही है? चर्च कलीसिया के बुजुर्गों, चल पढ़ इसको। कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंत के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। अच्छा, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा। सो तेल किसने मलना है? बुजुर्गों। और दुआ किसने करनी है? किसने? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ बुजुर्गों नहीं करनी। मैं इसलिए चाहता था इस पर हो गया, अच्छा किया तूने नहीं बोला, सियाणी है। दुआ का कहीं नहीं लिखा हुआ, सिर्फ बुजुर्ग की दुआ करें। फिर से पढ़, इन्हें समझ नहीं आई। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। अच्छा, आगे। और वो खुदावंत के नाम से। अब इट्स मीन के कोऑपरेटिव प्रेयर का भी एक फंक्शन है चर्च में। बुजुर्गों को बुलाने का मतलब 2 या 3 मिलके भी प्रेयर कर सकते हैं। कोऑपरेटिव अनॉइंटिंग सम टाइम चाहिए यहां पर योक ब्रेक करने के लिए, जुड़ी अनॉइंटिंग जो 3-4 रल के अटैक करेंगे।
लेकिन लीड एक करे प्लीज़, ये भी डिसिपलिन रखो। एक बन दे बीमारी नू, एक कढ़ दे बीमारी नू, एक जला दे बीमारी नू। बीमारी नू भी समझ नहीं आती मैं किहड़े तंदूर च वड़ गई हाँ, किधर नू जाना है। बीमारी स्पिरिट होती है और स्पिरिट कमांड ले रही होती है, और कमांड क्या जानी है, सॉफ्टवेयर आप उसका करप्ट कर देंगे, उसे समझ नहीं आएगी किधर नू जाऊँ। उसको कमांड एक बंदा दे, करना क्या है। अनॉइंटिंग सारे रिलीज करो, फेथ सारे रिलीज करो, लेकिन डायरेक्शन ठीक च। ओके ओके चल। और वो खुदावंत के नाम से उसको तेल मल कर। सो कौन मलेंगे तेल? बुजुर्ग। अनॉइंटिंग शुड फ्लो थ्रू बुजुर्ग, देहात। ओके आगे। उसके लिए दुआ करें। अच्छा, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। सो यहाँ ये नहीं एग्जाम्पशन मिली कि जेड़ा दुआ करवान आया वो दुआ ना करे। यहाँ ये नहीं कहीं पर लिखा हुआ जेड़ा करवाना है वो करे ही ना, कि कहा है उसने ये नहीं कहा। अपनी तरफ से नहीं ऐड कर लेना कि इन्होंने ही कहा गया दुआ करने लिए, आप भी दुआ करेंगे। वो करेंगे लेकिन आप भी करेंगे। और फिर क्या होगा? जो दुआ ईमान के साथ होगी, अच्छा, उसके बायस बीमार बच जाएगा। अच्छा, और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। ओके। और अगर उसने गुनाह किए हों हाँ। तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। ओके। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। हाँ। और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। सो ऑटोमेटिकली माफ़ी नहीं हो जाएगी। आगे लिख दिया उसने कि इकरार करने से होगी और फिर हीलिंग फ्लो करना शुरू करेगी। कन्फेशंस लें लोगों से। ओके आगे चल। मैं इस पर भी बोलना नहीं चाहता, मैं अगली एक आयत पे बोलना चाहता हूँ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एक तो रास्तबाज के दिमाग 'च ये गल बह जावे कि मैं रास्तबाज हाँ, तो जो मैं कुछ किया तो इन्हें जो मंगया वो नहीं, इस तो इलावा भी बड़ा कुछ इसकी जिंदगी 'च होएगा। रास्तबाज दो चीज़ों के साथ मिनिस्टर करे। नंबर 1 फेथ कि मैं रास्तबाज हाँ। नंबर 2 फेथ कि जो मैं कुछ किया तो उदों इस तो इलावा भी बड़ा कुछ होएगा, क्योंकि बाइबल बताती है बहुत कुछ। हीलिंग छाड़ दी, हीलिंग का कॉन्टेक्स्ट है पिछे सियाको सबब च गल हीलिंग की ही होने रही है, लेकिन हीलिंग के नाल उस जिंदगी जो होर भी बड़ा कुछ एक्टिवेट हो जाएगा, खुल जाएगा। आर यू गेटिंग मी? आती समझ आपको? आगे चल, ये भी मेरा टॉपिक नहीं है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। ये मेरा टॉपिक है। ओके। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे। कैन जी? जोश से। अब जिस बात पर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं वो ये है, अगर आप इसको 14वीं आयत से पढ़ना शुरू करो ना, तो ऊपर अब नई बाइबल्स में ना इसका नाम लिख दिया गया ऊपर सब्र। क्या लिखा हुआ है? सब्र और दुआ। और दुआ। सब्र ते दुआ। जेड़े जेड़े बीमार जे, जेड़े जेड़े पोजेस जे किसी भी एरिया च या किसी भी डीमन के हथों तंग जे, दो चीज़ें आपके माइंड में हो, सब्र और दुआ। ये कॉन्टेक्स्ट है। ये आयत एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट के बाहर प्रीच होती है एलिया वाली, इसलिए इसकी इम्प्लीकेशन भी बाहर ही होती है। लेकिन मैं आज इस आयत को कॉन्टेक्स्ट में रख के सिखाना चाह रहा हूँ आपको। कॉन्टेक्स्ट हीलिंग का है, शिफा का है। पास्टर आशे सुन, एल्डर्स सुनो, सारे बुजुर्गों सुनो, चर्च में जितने बुजुर्गों जो हीलिंग प्रेयर या डिलीवरेंस प्रेयर मिनिस्टर करते हो। मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट दुआ का, हीलिंग का चल रहा है, और फिर बात आ गई एलिया की दुआ की, और यहां पर उसने बोला कि एलिया भी हमारा हम तबीयत इंसान था। रिलेट किया गया है हमारे साथ उससे। क्यों किया गया है? कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? हीलिंग का। इन द चैप्टर ऑफ हीलिंग आपका बिहेवियर एलिया की तरह का हो जाए, हुण एलिया के बिहेवियर को स्टडी करो। इंग्लिश पढ़े नूं बड़ी मजेदार गल लिखी हुई थी, सिर्फ इन्नी नहीं। Elias was a man subject. सो क्या था वो? सो डोंट स्टडी हिम एज ए प्रॉफिट, स्टडी हिम एज ए सिंपल मैन। जान जी तुसी जी।
Okay. subject to like passions. ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਲਾਈਕ ਪੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੰਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸ਼ਨਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਕਿੰਗਸ ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ सब्जेक्ट टू का मतलब होता उनके नीचे था चीज़ें इमोशंस पैशंस उसके ऊपर थे वो इनको लीड नहीं करता था ये उसे लीड करते थे पैशंस जंज मेरा तो पास्टर आशर दा क्रिकेट खेलने का पैशन है ये पैशन हमें संडे को लीड कर लेता है ग्राउंड तक ले जाता है थके भी होईदा है नहीं भी टाइम होता तद भी कर लीदा ये पैशन है हमारा मैंने सिर्फ मिसाल देने की कोशिश की है समझ आइए आपको एलिया के भी पैशंस थे जो उसे लीड कर लेते थे वो पैशंस को लीड नहीं करता था बाइबल बता रही है मैं नहीं बोल रहा लिखा हुआ है ही वॉज सब्जेक्ट टू लाइक पैशंस जंज दियां साड़ियां ख्वाहिशां जंज दे साडा दिल जंज दा साडा मजाज ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸੋ ਸਟੱਡੀ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨ ਜਸਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਜ਼ਬਲ ਦੇ ਤੇ ਅਖੀਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ आपको इस पोजीशन पर आ जाना चाहिए वो हमारी तरह ही था और अगर वो हमारी तरह का हो के इस लेवल पर परफॉर्म कर सका है मैंने एक चीज़ अभी टीच किया उसका पैशन नंबर सेकंड As we are, and he prayed earnestly. He prayed earnestly और इसका उर्दू तर्जमा क्या हुआ है उसने बड़े जोश से दुआ की सो व्हेन यू विल प्रे किसे बीमार ली ਤੇ ਮੂੰਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਣ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੈਸੇਜ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਮਿਣ ਖੁਦਾ ਚਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈਵ ਪ੍ਰੇਡ ਫॉर यू कैन गो नाउ हैव यू नोटिस जब मैं मिनिस्टर करना शुरू करता हूँ मैं स्पिरिट में आ जाता हूँ फ़ौरन हाँ मेरा टोन चेंज होता है मेरा लहजा चेंज हो जाता है नाउ यू आर डीलिंग विद एनिमी जो पकड़ के बैठा हुआ किसी शख्स को और उसे छुटने नहीं दे रहा तो तुम लाड प्यार दे नाल बुजुर्गों सुनो कलीसिया के बुजुर्ग हथ पाओ इंज दा पाओ कि वो चीखा निकल जान बंदे दियां नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ कि बाद च मैंने तो खबर है कि इन्हें छोटा फेर दिता उसने बड़े जोश से दुआ की। जोश जी घर भांडे नहीं सुटते तुसी गुस्से च आ के मचाई होंगी लाइक दिस एनमी रियल एनमी हुण तुहाडे सामने तुहाडा एग्रैशन जिथों किथों भी किसी का भी गुस्सा इकट्ठा करके दे इधर नूं तोड़ दिओ तुहानूं किसी का भी गुस्सा है उसको जमा करें है नहीं था कि नहीं है ही किसी ने दस उसने बड़े जोश अगर एलिया को स्टडी करेंगे ना एलिया को सिर्फ गुस्सा खिया पे और जज्बल पे नहीं था जाके पढ़िएगा थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ और प्रॉब्लम का बाइस और भी बड़े लोग थे फाल्स प्रॉफिट्स भी उसका प्रॉब्लम था आपको अग्रेशन होना चाहिए जब आप मिनिस्टर कर रहे अग्रेशन में रहें जो तुम हीलिंग डिलीवर उन्हें दानिश ने आख्या तो दानिश साहब को खलोते वेयर इज योर अग्रेशन वेयर इज योर पैशन हीलिंग तो डिलीवरेंस इंज नहीं होती अब मैं बुजुर्गों को टीच कर रहा हूँ चर्च के बुजुर्ग तबीयतन एलिया वाला मजाज तुहाडा होए फिर तबीयतन तुसी एंगर च हो मैं नहीं छड़ना ओके कैरी ऑन इंग्लिश पहला फिर उर्दू that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain,
and the earth brought forth her fruit. Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him, let him know that he which converteth the sinner from the error of his way. चल छोड़ दे, उर्दू में आ जा. उसने बड़े जोर से दुआ की कि मीना बरसे. ओके. चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मीना बरसा. तो कैसे दुआ की थी? जोश से, ईमान से, हाँ? सिर्फ जोश ना. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ. ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ. चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मीना बरसा. फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा. अब मुझे बताएं इस हिस्से में आए. फिर उसने दुआ की. ਹੁਣ ਉਹਨੇ जोश ना नहीं की थी. सुने, दुआ के स्टाइल्स, दुआ के पैटर्न्स, दुआ के टाइम्स देखें. किस टाइम पर आपको जोश दिखाना है, किसके आगे दिखाना है. तब वो खड़ा था, किंग और पैलेस के मैदान में था, और उसका अग्रेशन वहां पर नजर आ रहा है. यहां पर सिचुएशन कुछ और है. अब दुआ का मोड स्टाइल बदलेगा. अब यहां जोश नहीं है, यहां सब्र है. किसी को हवाला याद है कैसे दुआ की थी उसने जिदन उन्होंने मीम बरसाना सी? हाँ जी, कैंज किन्नी हरी 7 वरी. जस्ट मैं यहां लाना चाह रहा हूं आपको. एक वरी तुसी दुआ कर ली किसी मरीज ते नहीं कुछ होया, डोंट वरी, प्रे वंस अगेन. बुजुर्गों सीखो इसको, इस स्क्रिप्चर को हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में सीखो आज. प्रे वंस अगेन. सेकंड टाइम नथिंग हैपेंड. प्रे वंस अगेन, नथिंग हैपेंड. प्रे वंस अगेन. फिर टेस्ट करा के आओ, नहीं बदल आया. प्रे वंस अगेन, नहीं बदल आया. प्रे वंस अगेन. जब तक के चीज वजूद च नहीं आ जाती. दिस इज व्हाट जेम्स सिखाने की कोशिश कर रहा है एलिया की लाइफ से. हीलिंग, इट्स नॉट जस्ट वंस. माय स्पिरिचुअल फादर प्रे फॉर मी, प्रेड, नथिंग हैपेंड, रिपोर्ट ऑन जी. डोंट वरी, चेंज द पर्सन. मुझे उस पर कोई शिकायत नहीं होगी, मैं खुद टीच कर रहा हूं. चेंज द पर्सन, गो टू पास्टर आशर. यस्सु को जलाल मिलना चाहिए. और जानबूझ के खुदा कभी कभी आपका ईमान अपने मेन लीडर से हटवा रहा होता है और अपने ऊपर लगवा रहा होता है. जानबूझ कर भी वो हटवा रहा होता है, और वो किसी छोटे के वसीले से, किसी जूनियर के वसीले से भी हीलिंग को, डिलीवरेंस को करवा देता होता है, ताकि जूनियर भी तैयार हो, फेथ में खड़ा हो, और सीनियर भी हम्बल हो. इट्स जस्ट टू ग्लोरीफाई जीसस क्राइस्ट, नॉट टू अ मैन. बट प्रे until something manifests. जब तक कि कुछ ज़हूर में नहीं आ जाता. और यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि हीलिंग नहीं होएगी, और लिखा है कि वो शिफा पा जाएगा. सो आप में से जितने भी यहाँ कोई बीमार बैठे हैं, अनीता ने सारा सरमन वैसे प्रोफेटिकली गा दिया हुआ है. मैं उसे सुन रहा था शुरू से, जितने गीत वो पिक कर रही थी, जो बातें कर रही थी, वो प्रोफेटिकली यही कर रही थी सारी. चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु. जस्ट कम विद दिस मेंटेलिटी. नो वरीज. लास्ट संडे प्रेयर हुई, कुछ नहीं हुआ, नो वरीज. इनिशिएट हो चुकी है हीलिंग पहली प्रेयर से. जब एलिया ने पहली दफा सर घुटनों में फंसाया, क्लाउड वेपोरेशन बननी शुरू हो गया, कलेक्शन होनी शुरू हो चुकी हुई है. जस्ट वेट. जिदन फार्मूला पूरा होया, जिदन 7 गोते पूरे होए, कोड़ निकल चुका होएगा बॉडी चों. Just follow the process. Just follow the timeline. Just develop the patience in your life. It shall manifest. It shall manifest. होता क्या है कि शायद 6वीं बारी ते ਤੁਹਾਡਾ फेथ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है. 6 बारी दुआ करवाई यार, नहीं है, गिरजा बदल दे, चर्च बदल. 7वीं दफा में मैं होना था, वो वजूद में आ जाना था. लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਟਨ ਨੇ डिस्करेज इन्ना कर छड़िया,
ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚਰਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਅਗੇਨ ਫਰੋਮ ਜ਼ੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਉਸ ਚਰਚ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। अगर कोई तुम में से बीमार हो तो वो कलीसिया के बुजुर्गों के पास लाया जाए और वो उसको तेल माल करे, दुआ करे, फिर ज़ीरो। दिस इज़ व्हाट मैं इनकरेज करता हूँ जो ऑनलाइन भी मुझे देखते हो, एक चर्च में डेडिकेटेड कमिटेड रहो। सुनो, लॉयल्टी खुदा भी रिस्पोंड देंदा जे, उहदा अजर देंदा जे, ते दुनिया भी देंदी। इफ यू आर नॉट लॉयल विद योर मैन ऑफ गॉड, यू विल नेवर बी रिवार्डेड, कभी आपको अजर नहीं मिलेगा। लॉयल्टी दुनिया का रूल है। आप ईवन जानवर तक अगर किसी ने तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੋਇਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹਾ ਜੇ ਛੱਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਸਟਾਪ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਆਏ करेगा। जहाँ है मेरी एक स्पिरिचुअल डॉटर है और एक मेरा दोस्त है, दोनों के घरों की अलग अलग स्टोरी है। बस एक बारी कुत्ते फीड कर देता रोटी दे, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੁਣ ਤੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਟਾਫ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ। लॉयल्टी रिवार्ड दे रही है। ये यहाँ की यूनाबाद की स्टोरी है, दोनों घरों को मैं जानता। किसी ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੋਹਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਵੱਢ भी ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। एक दो दफ़ा खिलाएं, वो आदी हो जाएगा, फिर उसे पता होगा कि आप उसके फेवरेट हैं। सुनो ध्यान ना, फिर मैं एलिया की लाइफ से आपको टीच कर रहा हूँ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान, डोंट वरी। नहीं होई, मैं पहला दसिया कि यसू दे हथों नहीं सी होनी, पतरस दे हथों, किसी दे होर दे हथों हो जाएगी। लेकिन आप जो दुआ करवाने आए हो, डेडिकेटेड और कमिटेड रहो, सब्र को पूरा काम करने दो, इस वर्ष को पूरा कर दे। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा। तो और इधर यहाँ मुक्सर करके लिख दिया, इतना मुक्सर नहीं था ये वाकया। आपको मैं इस पर सुखा चुका हूँ, एक सरमन दे चुका हूँ कि कितना डिस्टेंस उसके नौकर को जाके देख के आना पड़ता था माउंटेन के ऊपर। कितना टाइम ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। इस पे टाइम लगता है। सो सिर्फ सिंपल प्रेयर नहीं है, इस पे टाइम लगता है। आप ईमान पर रहो, डटे रहो, टाइम दो, सब्र को काम करने दो, आगे चलो। तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। अच्छा, 18 कंप्लीट। ओके। तो मेरा ख्याल इसी के कॉन्टेक्स्ट में ही चलें, बस इसको छोड़ देते हैं, टाइम ओवर हो रहा है, ताकि मैं मिनिस्टर कर सकूं। मैं आपको क्लोजिंग ये करवाना चाह रहा हूँ। प्लीज़ अपने अंदर पेशेंस को बिल्ट अप करें, कंस्ट्रक्ट करें, काम करने दें इसको, क्योंकि आप धक्के खाने से बच जाएंगे अगर आपके अंदर पेशेंस है। नंबर 1 हमने बात सीखी, जोश। जब प्रेयर को करे तो जोश के साथ करें। ओके, कंपैशन हो आपके अंदर, जोश हो। जो एल्डर्स हैं सीखें इस बात को, जो हीलिंग मिनिस्टर करते हैं। और इस बात को माइंड में रखो कि अगर आपके हाथ से नहीं होता तो वो किसी और के हाथ से हो जाएगा। अपने ऊपर इसका ब्लेम ना लें। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे ये बात टीच की थी बड़े साल पहले। उन्होंने मुझे बोला था कि अगर कोई हीलिंग होती है यार, तू आप क्रेडिट उसका लेता है। उन्होंने बोला था कि अगर किसी की हीलिंग नहीं हुई तो तू अपने आप को ब्लेम ना कर, मैं करना ना सा। मैं कह रहा हूँ ना, जिन्हें भी आए बीमार सब को हीलिंग होनी चाहिए मीटिंग से। तो मैं रोता होता था घर जाके, जब नहीं थी होती किसी को। तो मुझे उन्होंने बोला था कि डोंट ब्लेम योर सेल्फ, तेरा काम है मिनिस्टर करना। क्योंकि उन्होंने रीज़न दिया, उन्होंने कहा अगर आज नहीं हो रही तो कल को जब होगी तो फिर उसका जलाल भी तू ले जाएगा कि मेरे हाथ रखना नहीं होती। तो अवॉइड इट, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, बिकॉज जिदन हुई तो उदन तू फिर अपना क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। सो फॉर मी, जब मैं आप पर ईमान से दुआ कर देता हूँ, आई नो समथिंग हैज़ स्टार्टेड, कुछ ना कुछ आप में शुरू हो चुका है। इट्स नॉट कि मैं हवा च गल्लां करने, आई हैव पंच्ड द एनिमी जोर नाल, कुछ ना कुछ ज़रूर हो चुका है। अब आगे इसको कंटिन्यू करें, इसमें बने रहें, इसमें चलें,
اور دعا کرواتے رہیں. اور میں نے 7 ٹائمز کا بولا, یہاں ایلیا کو پریئر کرنی پڑی تھی 7 ٹائمز. انویسٹیگیشنز, گو بلڈ ٹیسٹ رپیٹ کروا کے آؤ, کچھ ہوا ہے نہیں ہوا, گو اگین. خاص طور پر میں اپنی اسپیڈ میں فیل کر رہا ہوں, اٹس اباؤٹ سم سسٹر جس کی پریگنینسی کا ایشو چل رہا ہے. اٹس آن لائن. دا فیتھ لیسنس ایشو ناؤ آفٹر گیٹنگ پریئرس بائی مینی مین آف گاڈ. بار بار مس کیریجز کی وجہ سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. پلیز آپ نے فیتھ میں بنی رہے. دیر از اے ٹائم یہ کیری کرے گی پریگنینسی, اینڈ یو ول ڈیلیور دس چائلڈ. You will deliver this child, and the name is Michael. The name of this child is Michael. میں کوئی اور نام بھی سنتا ہوں فیملی میں جس کے نام سے آپ کے ہسبینڈ کا نام بھی اینڈ پہ EL ہی ہے. I do not know یہ سیموئل ہے, ڈینیل ہے, but it's Ezekiel or something like EL اینڈ پر آ رہا ہے. اس طرح سے کوئی نام ہے آپ کے ہسبینڈ کا, اور آپ کے بیٹے کا نام خدا مجھے بول رہا ہے مائیکل. سو پلیز اپنے فیتھ پر کھڑی رہ, خدا تجھے منسٹر کرے گا اور وقت پر تو اس بیٹے کو لے گی. گاڈ بلیس یو. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے, کھڑے ہو جائیں, مجھے منسٹر کرنے دیں اب. اور میں چاہتا ہوں جو کوئی بھی دعا کروانے کے لیے آیا ہے وہ سامنے نکل کر آ جائے, اس ایمان سے کہ وہ دعا کروانے نہیں آیا, وہ ریسیو کرنے آیا. لانتا مکایاں میرے ہتوں ساریاں نتاجا, زندگی چ یسو جیا یار, دارا دارا لارا دارا دارا. نیلم ایک حوالہ نکال جلدی سے. فیٹنس کا بھی مطلب لے لیتے ہیں, سادہ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ چربی سے, موٹاپے سے وہ نیک کے اوپر جو برڈن ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا, وہ جوا ٹوٹ جائے گا. گردن موٹی ہونے سے, گردن میری موٹی ہوں نہ تاڈا جوا نہیں ٹوٹ سکتا. میں اس کو سادہ کر کے سمجھانے لگا. میری گردن موٹی ہونے سے میرے گردن کے اوپر ڈلا ہوا جوا ٹوٹے گا. پرانے دور چ پنڈا تھاواں چ جدوں جوا پاؤندے سن انہاں تے ڈنگراں دے اوتے, تو وہ ان کی گردنوں کے اوپر اس کو فٹ کیا جاتا تھا تاکہ جانور ادھر ادھر نہ جائے. اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ یوک توڑا جائے گا جب تیرا گردن کے اوپر سکن کا اور بونز کا اور گوشت کا ایریا بڑھنا شروع ہوگا, وہ یوک بریک ہو جائے گا تیری اپنی فیٹنس کی وجہ سے. میں بول کیا رہا ہوں, سارا کچھ دعاواں کروانا نہیں یہ ہوندا, آپ کو خود سے آؤٹ گرو کرنا ہے اپنی سچویشنز میں سے, بیکاز آف دا انوائنٹنگ, ناٹ بائی دا انوائنٹنگ. سارا کچھ مین آف گاڈ اور بزرگوں کے ہاتھ سے نہیں ہوتا. خدا سم ٹائم آپ کو چھوڑ دے گا. یہ از مائی لائف, میرے لیے کسی بزرگ نے کبھی دعا نہیں کی, اور ملٹیپل سکنسز کے اٹیک سے میں نکلا ہوں بیکاز آف دا انوائنٹنگ جڑی میرے اندر ہے. آئی آؤٹ گرو دا سچویشنز. میں نکل کے باہر آتا ہوں, میں پھول جاتا ہوں, میں بڑا ہو جاتا ہوں, اور میں اس انوائنٹنگ کو فنکشن کرنے جاتا ہوں. میری زندگی کے اوپر سے وہ جوا توڑ کے رکھ دیتی ہے. آر یو لسننگ انیتا؟ بیکاز آف دا, ناٹ بائی دا انوائنٹنگ. بلیور سنو دھیان سے, آپ کی اپنی انوائنٹنگ کو بڑھنا ہے, صرف دوسرے نے نہیں ملی ہوئی. چرچ میچور ہو جاؤ. میرے لیے دعا نہیں کرتا میرا بندہ, میری بیوی میرے لیے دعا نہیں کرتی, اور کنی کرے. اگر ایک ہی دفعہ اس نے کر دی ہے تو کی تو ہے, اٹس یو جو آؤٹ گرو نہیں ہو رہا. اٹس یو جس کے کپڑے چھوٹے نہیں ہو رہے, وہ جڑے چھلے تے دے کے گئے وہی پائی جا رہے. اٹس یو کہ آپ ہی اتنے سے ہیں 2cc کے, جو بڑھ نہیں رہے, اسپرچولی گرو نہیں کر رہے, ترقی نہیں کر رہے. آر یو گیٹنگ می؟ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے انوائنٹنگ اپنے اندر انکریز کرو, اور یوک آپ کی گردن, آپ کی اپنی گردن سے ٹوٹ جائے گا. اٹس ناٹ جسٹ پریئر. میں آپ کے اوپر جب ہاتھ رکھتا ہوں, میں انوائنٹنگ بھی آپ میں ریلیز کرتا ہوں تاکہ یہ آپ کے اندر انوائنٹنگ جڑ پکڑ کر بڑھ جائے, اور پھر آپ کے اوپر سے, لائف کے اوپر سے جوئے ٹوٹنے شروع ہوں. بردر آئزک سب سے پہلے آپ سامنے آؤ. کم فارورڈ پلیز, مجھے آئل چاہیے کوئکلی.
बेहद यीशु तेरा प्यार. प्लीज नील डाउन हो जाए, मेरी तरफ करके नील भुलिया डाउन हो जाए. भुलाया जा नहीं सकदा, बेहद यीशु तेरा प्यार. भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार, कदी गिणिया भी जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार. And we break every yoke. जो इस क्राउन के पीछे है, जो इस ग्लोरी के पीछे है, go blind by fire in the mighty name of Jesus Christ. We speak death in the name of Jesus Christ. Those who are chasing you, तेरा पीछा करने वाले हलाक होते हैं, तेरा पीछा करने वाले बर्बाद होते हैं, तेरा पीछा करने वाले जड़ से उखाड़े जाते हैं, तेरा पीछा करने वाले गरक होते हैं, तेरा पीछा करने वाले मनो मट्टी तले दफन होते हैं. In the name above all names, the name of Jesus Christ. वो अनॉइंटिंग तेरी लाइफ पर ठहरी रहती है और तेरे ताज को कोई हाथ न डालने पाएगा. तेरे दुश्मन परागंदा होते हैं, कोई हथियार प्रॉस्पर नहीं होता, वो डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए जाते हैं. मैं स्पिरिट मैन होते हुए उन डॉक्यूमेंट्स को फाड़ता हूं यीशु के कादर नाम, उन एक्यूजेशंस को, एक्यूजर्स को फाड़ता हूं यीशु के कादर नाम में. बाय फायर बाय थंडर्स हर एक एक्यूजर गिराया जाता है आज. यीशु के नाम Because of your presence in this place, तेरी मौजूदगी यहाँ होने, खुदा की हजूरी में होने की वजह से खुदा की हजूरी तेरे साथ जाती है. The robe and the wrath of God, the passion of God, the zeal of God, it is over in Jesus' name. Jesus. Father, we speak longevity, wisdom, life, excellence, character, colors. Family, I'm listening this word colors. Colors. I'm listening this word upon the life of this young boy, Nathan. Colors. And I'm seeing different colors actually hovering upon his life. And the Holy Ghost is ministering. He is saying that I will make his life colorful. The divine colors are deposited into his life. Colors. Colors. I'm seeing this word again and again. Colors. So shall it be for you. Live longer. Grow. Go. In Jesus' name. बेहद यीशु तेरा प्यार. I'm coming, मैं आपके पास आता हूँ. अपनी आंखें बंद कीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए. दुआ का एक स्टाइल मैंने आपको टीच किया, अग्रेशन, पैशन. कंफर्टेबल ना हो अपनी बीमारियों के साथ, कंफर्टेबल ना हो अपनी दुखों के साथ, अपने जिस्म के हालत के साथ कंफर्टेबल ना हो, एडजस्ट ना करने की कोशिश करो, रिफ्यूज करो इसे, रिजेक्ट करो इसे, लानतों को. अनीता बुलंद आवाज से गाओ. लानता मुकाया. आंखें बंद, हाथों को ऊपर करके दुआ कीजिए. भाइयों आप भी प्लीज प्रे कीजिए. मेरे नाल मेरे उतो सारिया यीशु. He is your friend Jesus Christ. वो आपका दोस्त है.
यीशु आपका दोस्त है और वो आपसे मोहब्बत करता है. फेथलेस ना हो. बेहद यीशु तेरा प्यार. Holy Ghost, Holy Ghost, we welcome you. Holy Ghost. Thank you, Jesus. 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 छोड़ दें, पीछे जाएं, पीछे खड़े. Thank you, Jesus. I feel the love of Jesus Christ in this place. I feel the love of Jesus Christ. I feel the love of Jesus Christ, the compassion of Lord Jesus Christ. He is touching the lives. Those who are watching me live, I'm feeling the love of Lord Jesus Christ. Keep worshipping, Anita. Keep worshipping. Don't stop. Sing it loudly, church. Sing it. Sing it. आप जो घरों में भी हो, जो सुनते हो, join us in worship. Praise Him. Jesus Christ is the Lord of Lords, King of Kings. You are blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Loose. 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 When I call you, pray, pray. Teach them. Teach them. When they come forward, teach them. Aha. Ha. For me, my life, He died. मेरे उतो जिंद दिती वा भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus.
anoint you. Okay? I want to anoint you. Brother. Jesus. Lift your hands. Dupatta hटा इसका जरा. In the name of Jesus. In your life. In your life. In your life. And I activate you in the ministry. I activate you in the grace. I activate you in the power. In the power. Power. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. तेरे अंदर से जिंदगी के पानी के चश्मे नदियां जारी हों, रिवर्स फ्लो करें. तू कायम रहे. तू कायम रहे. तू कायम रहे. तू कायम रहे. तू कायम रहे और तू दोबारा वापस ना मुड़े. तू कायम रहे. तू मसीह में कायम रहे और तू बहुतों को मसीह की बादशाही में खींच लाए. मैं तेरी रोशनी को कमांड करता हूं, हो जाए. रोशनी हो जाए. रोशनी हो जाए. माराखा लेज़ा व्रांडेज़ा दियारा शाहलाज़ो रबेरा खांशिया नामान ट्रेडेशे. यीशु के नाम में कर्सिस ब्रेक हो. कर्सिस ब्रेक हो. योक्स ब्रेक हो. लानते ब्रेक हो. जुए टूटे. 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 हर तरह की ग्रेव स्पिरिट, हर तरह की डेथ स्पिरिट लूज. इसकी बोन्स पर से टाइज टूटे. इसकी स्किन पर से टाइज टूटे. इसके डीएनए में से टाइज टूटे. इस जनरेशन पर से टाइज टूटे. मैं तेरी सोल स्पिरिट को अनटाई करता हूं डार्कनेस के एजेंडों से. डिलीवर हो यीशु के नाम में. तेरी डेस्टिनी हर तरह के योक्स में से बाहर आ जाए. शट अप यू एनिमी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. शट अप यू एनिमी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. आउट फ्रॉम दिस फैमिली. आउट फ्रॉम दिस फैमिली. आउट फ्रॉम दिस फैमिली. मैं स्पिरिट में देखता हूं किसी के घर में डीमंस इस वक्त मैनिफेस्ट करती हैं. मैं कमांड करता हूं, मेरी बहन तेरे फेथ की वजह से तू परेशान ना हो. मैं तेरे साथ तेरे बच्चे को पोजेशन में देखता हूं, पर तेरा हाथ उस बच्चे के ऊपर आए. और जब तेरा हाथ छूते हैं, एक हाथ मेरे स्क्रीन पर रख ले. यीशु के कादर नाम में आई रिलीज फायर. फायर तेरे बेडरूम में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. फायर तेरे सिटिंग और लिविंग रूम में. फायर तेरे स्टोर रूम में. फायर तेरी टेरिटरी में. आउट यू एनिमीज डार्कनेस. लूज लूज. जादू तवीज धागे जलना शुरू हो घरों के अंदर, जिंदगियों के अंदर. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. 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 I speak permanent healing, deliverance, freedom in the mighty name of Jesus Christ. Freedom in the mighty name of Jesus Christ. Freedom in the name of Jesus Christ. Freedom in the name of Jesus Christ. Freedom in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Every chain be broken. Every curse be broken. Every connection from the ancestral spirits be broken. Every altar be broken in the mighty name of Jesus Christ. Out, you old nature. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Life minister करता हूँ. Life minister करता हूँ. Brain cells fiber इस बॉडी के हीलिंग पकड़ते हैं. इनिशिएट करता हूँ इस हीलिंग को. DNA में चेंज आना शुरू होता है. DNA में चेंज आना शुरू होता है. In the name of Jesus. In the name of Jesus. इसका नर्वस सिस्टम रिस्टोर होता है. इन द नेम ऑफ जीसस. कर्सेस ब्रेक होती हैं. योक्स ब्रेक होते हैं. इस फैमिली पर से जुए टूटते हैं. टूटते हैं यीशु के नाम में. हर तरह का रेजिड्यूल इफेक्ट मेनिंजाइटिस का ब्रेक होता है इस लाइफ के ऊपर से. इन द नेम ऑफ जीसस. प्लीज सामने आ जाइए अगर कोई दुआ करवाना चाहते हैं, क्योंकि सर्विस के बाद मैं किसी के लिए प्रेयर नहीं करूंगा. सर्विस के बाद मैं किसी के लिए प्रेयर नहीं करूंगा. दिस इज द टाइम कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं. यू वांट टू मिनिस्टर. ओके. जीसस क्राइस्ट. फायर ऑल ओवर योर बॉडी पार्ट्स. इन द नेम ऑफ जीसस. लाइफ. 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 लूज
whosoever you are, come out. I lose this destiny. In the name of Jesus. Be healed, be delivered, be made whole, enlarge, expand. मैं तुझे वर्ड देता हूं, फैल जा, बढ़ जा, ग्रो कर जा, आउट ग्रो कर जा, हर एक जुए से बढ़कर आ, हर एक कर्ज से बढ़कर आ, ब्लेसिंग बन जा. मैं तुझे ब्लेसिंग डिक्लेयर करता हूं, ब्लेसिंग डिक्लेयर करता हूं. कर्ज का टाइटल तेरी लाइफ पर से रिमूव करके आई डिक्लेयर ब्लेसिंग. तेरी लाइफ ब्लेसिंग होती है. तेरे माथे पर ब्लेसिंग को बोलता हूं. तू ब्लेसिंग का कंटेनर बनती है. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. बी फ्री. हर तरह से आजाद हो, हर तरह से आजाद हो. इन द नेम ऑफ जीसस. मैं देखता हूं मेरा हाथ तेरी स्पिरिट और सोल को टच करता है. इट्स नॉट द बॉडी, इट्स द स्पिरिट और सोल. समथिंग इज टेकिंग प्लेस इन योर स्पिरिट एंड सोल. I sense there is nothing wrong with your body. It's something in the soul. I break every connection with the soul. I break every connection with the spirit. Be delivered. Be delivered. Deliver home. Receive freedom. Receive freedom. Receive freedom. Receive your deliverance. Now, it is well with you. It is well with you. Life. It is well with you. I minister healing. Never return, you enemy. You spirit of sickness, you cannot take this vessel. You are defeated in the face of the Lord. Out! Out! Out from her life. In Jesus' name. Oil. Oil. मेरे साथ लेके खड़े हो कोई. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Healing. 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 Permanent healing. मिनिस्टर करता हूँ तुझे. Permanent healing मिनिस्टर करता हूँ. Life मिनिस्टर करता हूँ तेरी लाइफ के अंदर. In Jesus' name. You shall come with testimony. Lifetime testimony. In the name of Jesus. Cells grow करना शुरू करो. Fibers heal होना शुरू हो जाओ. In the name of Jesus. Every curse, every tie be broken. Chains be broken. Lose your darkness, every attack. In the name of Jesus. Lose this life. हर तरह का विच डॉक्टर, हर तरह का विच डॉक्टर, हर तरह का विच डॉक्टर, I put you to shame in the name of Jesus Christ. I disconnect the soul, the spirit, in Jesus' name. Freedom, 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 in Jesus' name. Life, life, health in Jesus' name. Destiny in Jesus' name. I set this destiny in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. आपका क्या नाम है? इसका नाम मूसा है. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every heart problem, every sickness and death spirit, out now. Out now. Out now. Lose him. I command walls, chambers, veins, arteries, unblock हो जाओ. खुल जाओ यीशु के नाम में. Be normal.
curse be broken. Soul, spirit आजाद होती है. In Jesus name. आजाद हो हर तरह की कर्ज से. आजाद हो हर तरह की कर्ज से. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Okay. जाइए जाइए. In the name of Jesus. हर तरह का जोर टूटे डार्कनेस का. हर तरह का जोर, हर तरह की कर्ज टूटे, हर तरह की डार्कनेस टूटे. In the name of Jesus. Healing आए तेरी बॉडी में. हेल्थ आए तेरी बॉडी में. Jesus name. हमारी नस्ल सरफराज हो. Jesus name. Okay, okay. Jesus name. Lose your darkness in Jesus name. And never return. In Jesus name. Jesus name. Lord, meet him at the point of his need. Meet him in Jesus name. 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 In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Don't worry, don't worry. God bless you. God enlarge you. Increase you. Jesus. Let love lead you. Be filled with the love of the Holy Ghost. Love of God. Fire of Holy Ghost. I speak grace. 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 Grace to expand more in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of once again I break. I break. I break. Your spirit and soul and body I disconnect. You're free. Indeed. Free. Free. Free in the body. Free. Free. Free from every curse. Free from every yoke. Free from every mission. Free from every mission. Free in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Jesus. Freedom. 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 You are defeated. You are defeated. From the roots. Today. From the roots. From every fiber. From every cell. 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 From every fiber of your body. Disconnect you, devil. Demon. Out. You see altar. You see demon. In the name of Jesus. Peace. 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 Every curse be broken. Every curse be broken.
curse be broken from your life. Every witchcraft, every yoke be broken. In Jesus' name. From this generation, I break yokes, chains. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Life, 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 life. हर एक ख्वाब जो गंदा है मैं उसे अप्रूव करता हूँ. हर एक बीज जो गंदा है मैं उसे अप्रूव करता हूँ तेरी लाइफ से. फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम. कर्स ब्रोकन परमानेंटली. आज के बाद कोई सिकनेस, कोई डीमन, कोई डार्कनेस, कोई कर्स, कोई ऑल्टर तेरे खिलाफ नहीं बोलता. इन जीसस ने फ्री हो जाए यीशु के नाम. In the name of Jesus. Life, life minister करता हूँ. रिसीव करता हूँ यीशु. प्रॉस्पेरिटी मिनिस्टर करता हूँ. तुम एक नया सीजन प्रॉस्पेरिटी का तुम्हारी जिंदगी पर जारी करता हूँ. तुम्हारे पैसे को रिस्टोर करता हूँ. बरकत तुम्हारे हाथों में आती है और ठहर जाती है. यस यस यीशु. इस चीज़ों से बढ़ जाते हो तुम, ग्रो करते हो तुम, फैल जाते हो तुम, स्टैब्लिश होते हो तुम. ये चीज़ों से पास्टर आशर इनको सेल ग्रुप के लिए इनको मिनिस्टर करें. सेल ग्रुप के लिए इन चीज़ों से. फादर आई स्पीक हीलिंग, 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 हीलिंग every dead cell of this body. Receive healing, healing, sickness. I minister healing. You shall never be sick once again. Sickness is not your portion. Live healthy longer. In Jesus' name. In Jesus' name. कर्सेस, जादू, तवीज, धागे वापस जाते तेरी जिंदगी से, तेरी जिंदगी से, तेरे फाइनेंस, तेरे घर से अपरूट करता हूँ और कास्ट आउट करता हूँ. इन जीसस ने तेरे एक्यूजर्स, तेरे दुश्मन यीशु के नाम में जान से मिटाए जाते हैं, हटाए जाते हैं. इन जीसस ने, इन जीसस ने, यीशु के नाम परफेक्शन बोलता हूँ. Perfection, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. The Lord is saying, you are in my plans and you shall never be out. The Lord is saying, you are mine. I have paid my price. No one can snatch you. Forget about curses. If your family suffered, you shall never suffer. The Lord is saying, you are free. जिसको बेटा आजाद करता है उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता. You will never suffer. The deliverance anointing is upon your life. Use it. Use it in your family. Healing into this body. Permanent healing, I initiate it and I settle it. Settle it. No more sufferings. No more sufferings. Soul ties. Soul ties. Soul ties. Soul ties. I command you, loose. I divorce you. I divorce you from every soul tie. I disconnect you from every altar, every voice. तेरी जिंदगी पर से हर एक आवाज जो तेरे खिलाफ है, तेरी डेस्टिनी की, तेरी सोल, तेरी स्पिरिट के खिलाफ है, मैं ब्रेक कर देता हूँ. ब्रेक कर देता हूँ. You are defeated in the face of the Lord. Stop this nonsense now. 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 Every tormenting spirit, stop this nonsense. Check out. Check out. Check out. Check out. Pick up your negativity from head to toe. In Jesus' name.
In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. She is not yours. She is free. Free indeed. In the name of Jesus. Free, free, free indeed. From head to toe. Every fiber, every cell of this body is free indeed. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Hikmat, Hikmat, I call you out from the darkness agenda. This morning, I call you out. Out. Out from every cave, every grave. You are free. In Jesus' name. In Jesus' name. मेरी तरफ देख. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. मेरी तरफ देखो. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, 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 yes. Yes, you are free. You are free. You are free. Look at me. Look at me. Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Go free. Go free in Jesus' name. पुलिया पुलाया जान. अपनी आंखें बंद करें और कुछ देर के लिए शुक्रगुजारी करें. मैं हर तरह के ट्यूमर को, हर तरह के ब्रेन ट्यूमर को, हर तरह की सिस्ट को, हर तरह के फाइब्राइड को, हर तरह के दांतों के मर्ज को, हर तरह के सर की बीमारियों को, हर तरह के स्किन की डिजीजेस को, हर तरह की बोन की डिजीज को, हर तरह की टांगों की बीमारियों को, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. लोअर एब्डोमिनल के पोर्शंस में हर तरह की हिडन और एक्सपोज सिकनेसेस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई कमांड यू लूज दिस बॉडीज एंड नेवर रिटर्न. हर तरह की मैलिग्नेंट डिजीजेस, टर्मिनल कैंसर्स, यीशु के नाम में आउट दिस मॉर्निंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. ऑनलाइन व्यूअर्स आजाद हो जाओ यीशु के नाम में. इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. इन द नेम ऑफ जीसस. किसी के अंगूठों में, दोनों अंगूठों में सिकनेस है. इट्स अ फंगस टाइप, इट्स अ गैंग्रीन टाइप. आई सी ग्रीनरी. और अंगूठों में मैं गलापन सा देखता हूं. देयर इज हीलिंग टेकिंग प्लेस. हीलिंग टेकिंग प्लेस. सुनो ध्यान से. जब ऑनलाइन व्यूअर्स आपके साथ मैं कलाम कर रहा हूं, अगर आप हो तो फौरन कमेंट किया करो या उसको रिपोर्ट किया करो और कनेक्ट हुआ करो. कनेक्ट हुआ करो. आई एम सीइंग आपकी टांगें कांप रही हैं इस टाइम बिकॉज द पावर ऑफ गॉड. मैं देखता हूं तेरे घुटनों के नीचे नीचे से टांगों के ऊपर पावर मूव करती है एंड इट इज द हीलिंग टेकिंग प्लेस. तेरी दोनों अंगूठों में प्रॉब्लम है एंड डॉक्टर्स हैव आस्क्ड टू कट देम ऑफ बट दे shall sustain in the name of Jesus Christ. Your testimony is coming on your way in Jesus' name. In Jesus' name. I'm seeing somebody with a passport and this person is looking for Malaysian visa. It's coming. It's coming. It's coming, I'm seeing. It's Malaysian visa. It's Malaysian visa. Pakistani passport, Malaysian visa. You are going. Whosoever is waiting for this visa, I cause it to be pasted in your passport now. Now. और भी किसी को पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, you can bless your passports. आप अपने पासपोर्ट्स को हाथ रखो, उनको बरकत दो. And I release this blessing. I release this blessing. किसी का इसी मंथ में यूएस का वीज़ा आता है. सितंबर के क्लोज होने से पहले तेरी यूएस की टेस्टमनी आती है, वीज़ा आता है. यू जस्ट इन्फॉर्म कि खुदा ने ये बड़ा काम किया यीशु के कादर नाम में. जस्ट थैंक गॉड. जस्ट थैंक गॉड. चर्च थैंक गॉड. खुदा की शुक्रगुजारी करो. वी आर अबाउट टू क्लोज द सर्विस. ऑफरिंग वाले ऑफरिंग के लिए रेडी हो जाइए.
And I'm gonna bless this offering. अगर आप ऑनलाइन मुझे देखते हो, अपनी ऑफरिंग्स आप डिटेल्स पर भेज सकते हो. डिटेल्स दीजिए प्लीज. थोड़ी देर में डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शेयर की जाएंगी, या इस फेसबुक लाइव ट्रांसमिशन में ये डिटेल्स पिन्ड कमेंट्स में आ रही हैं. अगर आप बरकत पाते हो इस सर्विस से, इस चर्च से, यू कैन ब्लेस. आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप पार्टनर्स बन सकते हो, आप अपने सीड्स को, अपनी ऑफरिंग्स को भेज सकते हो ऑनलाइन. अकाउंट्स डिटेल्स दस्तयाब हैं. अगर आप पाकिस्तान में जैज़ कैश इजी पैसा की डिटेल है. एंड यू कैन कॉन्टैक्ट विद द पास्टर्स एज वेल. अगर आपको मुश्किल हो, दे कैन हेल्प यू टू गो थ्रू. एंड आई वांट टू ब्लेस यू. ये जहाँ पर भी हैं, अपनी ऑफरिंग्स अपने हाथों में ऊपर उठाइए. यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है. यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है. अपने जलाल की दौलत के मुआफे तेरे लिए, मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है. यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है. एज आई स्ट्रेच माई हैंड्स, मैं आपके दिए हुए पर बरकत को बोलता हूँ. एज ए प्रीस्ट, उस हाई प्रीस्ट यसु के साथ मिलकर आपके दिए हुए पर बरकत को रिलीज करता हूँ. मैं ये कह रहा हूँ, बरकत पर बरकत पाओ. आपका दिया हुआ इसी मूवमेंट एंजल्स रजिस्टर्स में लिखना शुरू करें. ऑफरिंग्स को कलेक्ट करना शुरू करें, ऑफरिंग्स को लेना शुरू करें. जैसे आप ऑफरिंग डालते हो, बैग के अंदर बोलो, गॉड रिसीव इट, फादर रिसीव इट, लॉर्ड रिसीव इट, किंग रिसीव इट. तेरी ऑनर में ये दिया जा रहा है. अपनी आंखें खोलो, ऑफरिंग करना शुरू करो. ऑनलाइन व्यूवर्स भी आप अपने इजी पैसा अकाउंट से, जैज़ कैश से या अकाउंट बैंकिंग डिटेल से आप ट्रांसफ़र कर सकोगे. और अगर आप करते हो तो आप ज़रूर बताओ, ख़ास तौर पर कि ये चर्च ऑफरिंग है. कमेंट्स में लिख दो चर्च ऑफरिंग है. और इसके अलावा आप खुदा के बादशाही में चर्च लैंड प्रोजेक्ट के लिए भी दे सकते हो. अगर आप ऑनलाइन मुझे देखते हो, वी हैव अ बिग प्रोजेक्ट जिसके लिए एक बड़ी अमाउंट चाहिए. यू कैन डू दिस ऑफरिंग, लेकिन उसको भी मेंशन करें कि चर्च लैंड प्रोजेक्ट के लिए है, ताकि वो डेडिकेटेड रहे और किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ना हो. सो यू आर ब्लेस्ड चर्च, एज वी हैव ब्लेस्ड द ऑफरिंग्स एज वेल. लेट मी डिस्पर्स द सर्विस, ताकि आप खुशी से अपने घरानों में जा सकें और ये वीक सेलिब्रेट कर सकें. एंड आई प्रॉमिस, हम 23 सितंबर के बाद फिर से मिलने को हैं. अभी रैप्चर नहीं होगा, लेकिन हम कल रात से फास्टिंग में जाने वाले हैं. आमीन. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हम सबों के साथ, हाज़िर घराने होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री चर्च के साथ, आलमगीर कलीसिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, अब से हमेशा तक यीशु के नाम में होती रहे. सब कहिए आमीन, आमीन, आमीन. ब्लेसिंग्स आप